क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही? यस, नजर आ रही है। मुंतहा, आप स्टार्ट कर दो अब। Hello? Am I on? You want to share screen? Yes. You can share करो आपको screen. Okay. Shall I start? या जी जी, मैं कह रहा हूँ Assalamualaikum आपको screen everyone. share करनी है तो मैं My name unshare is कर दूँ. Muntaha Asim. Sorry. मैं कह रहा हूँ आपको screen share करनी है तो मैं unshare कर दूँ. नहीं आप ऐसे मैंने शेयर नहीं करनी, पर आप it's all up to you. Okay, आप continue करें please. Okay. My name is Muntaha Asim, and on behalf of the Fast Data Science Society, I'm delighted to welcome you all today to this online session, in which we'll be focusing on machine learning operations, commonly known as MLOps. This workshop is proudly hosted in partnership with Karachi.ai, our esteemed collaborators for this season. Together, we aim to explore the essential practices of MLOps that are reshaping the landscapes of data science and machine learning. Established in 2021, the Fast Data Science Society has been committed to igniting a passion for data science amongst both the students and the professionals by providing a wide range of workshops, seminars, and events. Our mission is to foster an environment of learning and innovation where the full potential of data science can be realized, catering to a diverse audience interested in both the foundational and the advanced knowledge. So, in today's session, we will be focusing on MLOps, a discipline that combines machine learning, data science, and operational best practices. Alongside that, stay tuned till the end of the session to have a big reveal on a surprise that's there for you. As we initiate this chapter, I am pleased to welcome Karachi.ai as our partners for this season. Karachi.ai is a distinguished leading organization in the AI community of Karachi, uniting an impressive network including seasoned professionals, enthusiastic students, and dedicated researchers. Their commitment to advancing AI technologies and methodologies perfectly complement our goals to enhance our data science initiatives. It is my pleasure to introduce our esteemed speaker for today, Misam Raza Hemani. Misam is not only the founder of Karachi.ai, but also serves as the Vice President and Senior Manager of Business Intelligence at NBP Fund Management Limited. His extensive experience and remarkable contributions to the field of AI and data science makes him the perfect guide for today's discussion on MLOps. So, without further ado, please join me in giving a warm virtual welcome to Misam Raza as we look forward to gaining valuable insights from his experience with sklearn pipelines and more. Very kind of you. Thank you very much for introducing. Should I start the session or you want to say something more? No, you can start your session. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीसम सहमानी है और मुझे बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करा दिया है इस्लामाबाद ने। और हम पूरा जो सेशन है वो उर्दू में बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और कराची है का जो मकसद है वो उर्दू ही है कि उर्दू के अंदर हम सिखाएं ताकि कराची से लेकर हम गिलगित तक और खरमन यानी कि आखिरी शहर तक हम जो है वो ये इनिशिएटिव, स्किल्स और नॉलेज लोगों से शेयर कर सकें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कराची AI के बारे में जान चुके हैं तो जब भी आपको मौका मिले तो आप जरूर किसी न किसी अपने दोस्त से शेयर कीजिएगा। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। हमारी ऑन साइट अकेडमी कराची के अंदर भी है, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक कि मैं आप इनको थोड़ा सा रन डाउन करा दूं कराची AI के बारे में। Just let me know, admin, whoever is doing this. मैं कराची AI की प्रेजेंटेशन लगाऊं।
सुनिए। अच्छा, एनीवेज, लेट्स लीड द सेशन विद कमेंट्स। कमेंट्स में बताइए क्या आप कराची AI के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज यस कमेंट कर दीजिए ताकि हम इसको टू वे इंटरेक्शन में। ऑलराइट, तो मैं क्विक रन डाउन कराता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द मैं कराची AI के बारे में इंट्रोड्यूस करूँ। सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, आई हैव बीन सफरिंग सम इन्फेक्शन एंड फीवर, बट मैं गोली खा के आपके साथ कमिटमेंट में बैठा हूँ, तो प्लीज बेयर माय वॉइस अ बिट। ऑलराइट, तो कराची AI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अप्लाइड AI की कम्युनिटी है, और ये कम्युनिटी नॉट ओनली फॉर CS है बल्कि फॉर नॉन CS भी है। आपको मैं अपना तारुफ कराता चलूं कि मैं एक नॉन CS बैकग्राउंड से हूं, और मैंने तमाम वो स्किल्स अडेप्ट किए हैं जो कि यूजुअली स्किल्स CS पर्सन से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। सो आई हैव क्रिएटेड दिस कम्युनिटी बिकॉज फ्यूचर के अंदर CS और नॉन CS की बाइफिकेशन आहिस्ते से रिड्यूस होती जाएगी, और आगे आगे जाकर सिटीजन डेवलपर का कॉन्सेप्ट आते जाएगा, वेयर अ लॉट ऑफ नॉन CS पीपल वुड बी फोर्स्ड टू डू नो कोड लो कोड डेवलपमेंट, वर्कफ्लोज बनाने होंगे, डेटा साइंस करनी होगी, और टूल्स भी इसी तरीके से काम करेंगे। तो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी इनेबल्ड एज वेल, लेकिन इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। सो 3 एरियाज में हम लोग काम करते हैं, अवेयरनेस, एंगेजमेंट और एम्पावरमेंट। अच्छा, जैसे FDSS की कम्युनिटी है ऐसे हमारी भी कम्युनिटी, और कम्युनिटी दोस्तों के बगैर पूरी नहीं होती। तो ये हमारे कुछ दोस्त हैं जिनकी तस्वीर हैं, जिनकी वजह से ये कम्युनिटी चल रही है, और आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे दैट हाउ दिस इनिशिएटिव कैन स्केल एज वेल। तो हम सबसे पहले आते हैं अवेयरनेस के ऊपर। अवेयरनेस के अंदर हम हर क्वार्टर के अंदर एक अप्लाइड क्वार्टरली मीटअप्स कराते हैं, और इसके अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर हम 5 से 6 स्पीकर्स को बुलाते हैं, जिनको 15 से 20 मिनट दिए जाते हैं। अब आपको पूरा एक इवेंट प्लान तो आपके जहन में आ गया होगा, बट करते क्या है ये करते ये हैं कि आकर एक पर्टिकुलर टॉपिक जो भी थीम सेट किया गया होता है उसके बारे में अपनी डोमेन नॉलेज शेयर करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स, बाहर क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसको लोकली इंप्लीमेंट करने में। दैट्स ऑल अप्लाइड AI मीटअप। तो ये बेसिकली एक इंगेजमेंट और नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए लोग आते हैं, सीखते हैं और प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस भी होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इवेंट वी हैव AI क्लिनिक, so you can always from the audience perspective ask your questions ताकि आप स्पेशलिस्ट से सवाल पूछ सकें और वो वहीं पे अपॉर्चुनिटी के निस्बत आपको जवाब दे सकें। थर्ड थिंग इज द नेटवर्किंग। कई स्टार्टअप्स हमारे से फायदा उठा चुके हैं, और वी आर वेरी वेरी प्राउड टू कंट्रीब्यूट टू द जर्नीज एज वेल। ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि हमारे मीटअप्स का पार्ट भी बने। विजन RD इज फ्रॉम इस्लामाबाद, सो यू मे नो दिस गाय। इफ यू डोंट नो, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और अम्माद नदीम लिखे, आपको इस्लामाबाद के अंदर इनका कंप्यूटर विजन का स्टार्टअप मिलेगा, एंड दिस इज अ पाकिस्तानी स्टार्टअप वर्किंग ग्लोबली विद टोयोटा। ओके, तो दिस वाज अ ग्लिम्स ऑफ आवर मीटअप्स। आई होप कि आपने इन्विजन किया हुआ है किस तरीके से कराची के अंदर मीटअप्स होते हैं। The second pillar of engagement is again data science, AI। ये नेक्स्ट बिग फ्रंटियर है, हमें सीखना चाहिए, बट कहाँ से सीखें? अगर नेक्स्ट स्टेप नहीं बताएंगे तो पब्लिक जो है वो बिखर जाएगी। हमने उसके लिए 2 इनिशिएटिव्स लिए। सबसे पहले हमारा कोर्सेरा के साथ ऑनलाइन MOU है, इसके जरिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन के जरिए कराची AI के रेफरेंस से आपको स्पेशलाइजेशंस देते हैं। यू कैन ऑलवेज अप्लाई एंड गो फ्रॉम karachidoti.com/free। अभी आगे इसकी डिस्कशन आएगी। इसके अलावा हमारा एक रेगुलर एंगेजमेंट के लिए फेसबुक ग्रुप है, जहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अभी जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर रिसर्चर्स की बात हो रही थी, स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, डेवलपर्स की बात हो रही थी, तो वहां पर लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, जिनको अगर आप कोई आइडिया पिच करना चाहते हैं या किसी प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, आपको यूज केस नहीं समझ में आ रहा, और यू नीड अ को-फाउंडर फॉर योर स्टार्टअप, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड द थर्ड इनिशिएटिव इज यूट्यूब। जैसे मैंने बात की कि हम इस पूरी टॉक को उर्दू में लेके जाएंगे।
हमने पिछले 7 सालों में 2017 से 2024 के अंदर हमने पूरे 7 सालों के अंदर तमाम कंटेंट पूरी कोशिश से उर्दू में प्रोड्यूस किया. That has actually enabled us to create a 500 plus hours content on AI for Urdu. So this is the initiative karachidoti.com/free. Anybody can log in into it. बल्कि लॉगिन नहीं करना, बल्कि वेबसाइट पे जाएंगे, आप karachidoti.com/free जाएंगे. तो अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, या आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या डेटा इंजीनियरिंग के करियर को परस्यू करना चाहते हैं, या फाइनली जेनरेटिव एआई इज द लेटेस्ट थिंग, आई वांट टू बी इन दैट. सारी रिसोर्सेज, कोर्सेज, प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग इज अ सिंगल गाइडलाइन. सो यू कैन ऑलवेज ओपन दिस लिंक फ्रॉम द लैपटॉप. मोबाइल से सिर्फ बुकमार्क कर ले और लैपटॉप से खोल के फिर इसके अगेंस्ट में अपना कैलेंडर मैप करें. और आप ये सारी स्पेशलाइजेशन अगर ऐसे ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, एक रोड मैप कंप्लीट कर लेते हैं, तो यू कैन एक्चुअली गेट इनटू दैट पर्टिकुलर स्किल एंड जॉब लेवल एज वेल. The second thing is the Facebook group. तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. हमारा Facebook ग्रुप का नाम है Karachi.ai. कराची AI भी लिखेंगे तो आप पहुंच जाएंगे. And the third thing is उर्दू YouTube चैनल 500 plus hours of applied AI. इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये पूरा चैनल मौजूद है जिसके अंदर आपके पास तमाम हमारे पुराने मीटअप्स रिकॉर्डेड है. एंड लिटरली इतना सारा काम करने के बावजूद हम जो है वो यहाँ पर आज भी ये काम कर रहे हैं, और साथ में ये चैलेंज भी रखते हैं कि यू नेम द इंडस्ट्री, आप हमारे चैनल पे आए और उस इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे पेस्ट करें. 90-95% चांस है कि वो आपको इंडस्ट्री का हमारे यहाँ पे मीटअप मिल जाएगा. एंड यू कैन लिसन टू अ एक्सपर्ट जो कि आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि अच्छा यार इस डोमेन में एआई कैसे इस्तेमाल होगा. तो दैट्स ऑल अप्लाइड एआई. And this one is the last part, which is our Applied AI Academy at National Aerospace Science and Technology Park. So that's the whole academy. पूरा हमारे पास कैरियर ट्रैक है. यू बिकम ए कम्युनिटी मेंबर. अगर आप नॉन सीएस ट्रैक से ताल्लुक रखते हैं तो सर्टिफाइड डिजिटलाइजेशन एक्सपर्ट यानी बिजनेस इंटेलिजेंस से कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं. Then you can go into data science with certified data analyst, or either if you are a computer science graduate, you can always take up a brilliant and $1 billion field, high paying, really high paying field, that is data engineering. तो आप सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर में एनरोल कर सकते हैं. अगेन दिस इज एन एंटायर इकोसिस्टम दैट वी हैव क्रिएटेड इन कराची. So this is a quick glimpse into the programs what we offer. मेरा ख्वाब है कि मैं एडवांस तमाम कोर्सेज ऐसे ऐसे लॉन्च करूं, और ये विजनरी थिंकिंग हमने इसीलिए रखी है बिकॉज वी वांट टू सी पाकिस्तान एज द नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर एआई फ्रीलांसिंग एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. वन ऑफ आवर अर्लीस्ट इनिशिएटिव इज 2022 के अंदर हमने जेनेटिव एआई को लॉन्च किया. यानी कि जेनेटिव एआई के बारे में हमने ट्रेनिंग्स का स्टार्ट किया. हम पिछले 3 साल से रमजान स्किल सीरीज करवा रहे हैं, जिसका मकसद आपको जेनेटिव एआई के बारे में हैंड्स ऑन नॉलेज देना है. So this entire resource, karachidoti.com/generative AI, will enable you to get to the platform जहां पर आप नॉन सीएस है तो कैसे जेनेटिव एआई को लेवरेज कर सकते हैं, और अगर आप सीएस है तो आपके पास पॉसिबिलिटीज और भी बढ़ जाती हैं. यू कैन डू एपीआई इंटीग्रेशंस, डेवलप एप्लीकेशंस. तो वो कैसे होती है, वो सारे स्किल्स यहाँ पे सिखाए गए. सो हजारों डॉलर के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन ये आपको उर्दू के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे. तो यू कैन ऑलवेज गो टू karachidoti.com/generative AI, and I'm sure कि आपको बहुत फायदा होगा. Interested to learn more of our academy and initiatives, you can always go to karachidoti.com/education. And this is the last pillar of engagement. जैसे आज फास्ट के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं FDSS के साथ, इसी तरीके से हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं. जैसे हमने पाइकॉन के साथ काम किया है, we have worked in Temples, हमने AI समिट में काम किया है, इसके अलावा JDC के साथ काम किया है. Now we can claim कि हमने FDSS के साथ भी काम किया है. तो हम कोशिश करते हैं कि जो डोमेन नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है वो हम लोगों तक पहुंचाएं फ्री ऑफ कॉस्ट. Another initiative, what industry is being challenged, सबसे बड़ा इंडस्ट्री में चैलेंज है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज ना होना. यानी कि जिन लोगों को काम आता है वो इंडस्ट्री में जा नहीं पाते, और इंडस्ट्री को जो काम चाहिए वो उनको उस हिसाब से बच्चा नहीं मिलता.
तो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने दो एरियाज में काम किया, एक फ्रीलांसिंग और एक जॉब पोर्टल। तो वी हैव फर्स्ट वन इज द फ्रीलांसिंग, जिसके अंदर आप karachi.doti.com/freelance पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो स्किल्स जो karachi.doti.com/free के अंदर आपको सिखाए जा रहे हैं, वो स्किल्स आप फ्रीलांसिंग में अपवर्क के जरिए बहुत सारा यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ हैंडसम अमाउंट ऑफ कैश, जो कि ऑब्वियसली स्किल्स आते हैं तो बाहर गोरे को आपसे काम कराना है, एंड ही डजंट मीन कि कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट। द सेकंड थिंग इज द जॉब पोर्टल। ऑल्दो ये जॉब पोर्टल हमने ऐसा रखा है कि इसमें कराची से ही तमाम जॉब्स आती हैं यूजुअली, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज फ्रॉम karachi.ai, बट आहिस्ता से हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं टू अदर सिटीज एज वेल। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसमें इस्लामाबाद की जॉब्स भी डालें, बिकॉज इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी डेटा एनालिटिक्स और एआई की जॉब्स हैं दैट वी आर मिसिंग आउट। तो वी विल इंशाल्लाह प्लान कि हम यहाँ पर डालें। बट अगेन इफ यू आर लुकिंग फॉर कि मुझे पावर बीआई आता है, मुझे क्लिक आता है, मुझे टैबल्यू आता है, या मुझे सिर्फ पाइथन आती है, तो व्हाट जॉब्स आई कैन बी। तो karachi.doti.com/careers पे जाएंगे, आप अप्लाई नाउ करेंगे तो यू विल लैंड अप टू डायरेक्टली लिंक्डइन जो पर्टिकुलर जॉब पोस्ट है। दिस इज वॉलंटियर, हमारे दोस्त बुकमार्क करते हैं जॉब्स को और फिर वो इस डैशबोर्ड पे डिस्प्ले होता है। इंडस्ट्री की बात करें और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप्स ना हो, तो ये तमाम कंपनीज के साथ हमारी पार्टनरशिप्स हैं, अप्रेंटिस पार्टनर्स हैं, दे हायर फ्रॉम अस, दे कंसल्ट विद अस। तो कोशिश की है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे इंडस्ट्री, एकेडमिया, पीपल, प्रोफेशनल, रिसर्च सब लोग एक जगह जमा हो जाए। दैट्स अबाउट इट। हमारी यूनिवर्सिटी प्रेजेंसेस और कोलैबोरेशंस है, ये हमारा एकेडमिया कोलैबोरेशंस है, और इसमें आपको फास्ट का लोगो भी पहले से नजर आ रहा होगा। हमने पिछले 5 बैच सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट के फास्ट न्यूज़ में सिटी कैंपस में कराची में पढ़ाए। दैट्स द होल नंबर बेस्ड इम्पैक्ट दैट वी हैव क्रिएटेड। अगर एक कम्युनिटी ऐसा काम कर सकती है तो व्हाट इफ कि हर सिटी में ये कम्युनिटी हो, हम कितना इम्पैक्ट लगा सकते हैं। तो लेट्स गो विद दैट एंथुसियाज्म इनटू द नेक्स्ट सेशन फॉर MLOps। दिस इज द थिंग जहां पर karachi.doti.com पे आप ये सारी चीजों को विजिट कर सकते हैं। टू वे कॉन्फ्रेंस का एक ही तरीकेकार है। आपको कराची AI के बारे में कैसा लगा, क्या ख्याल है आपका? कोई भी कमेंट अगर आप देना चाहें तो कमेंट के अंदर दे सकते हैं। थैंक यू हसन फैसल, थैंक यू मोहम्मद मालिक। जरूर आप इसका फायदा उठाएं और वेबसाइट पे जाइए, वेरियस लिंक्स पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, आप कंप्लीटली जाइए, प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएं। बहुत सारा प्लेटफॉर्म के अंदर कंटेंट ऐसा है कि आप इस्लामाबाद में बैठे या कराची में बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, राइट। आपके फ्रीलांसिंग के कोर्सेज भी हैं? Yes. If you want to see, let me just show you. karachi.doti.com/freelance. This is teaching you Okay. entire skills for freelancing. Right? अब ये जैसे वीडियो लोड हो गई है, अब मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं तो डेटा साइंस में काम करना चाहता हूँ, तो भाई डेटा साइंस के अंदर मेरा जो करियर है वो कैसे होगा, किस तरीके से काम चलेगा, मेरे पास, मैं तो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर आए, अब आपको यहाँ पे ना 2-3 ट्रेनिंग्स दी गई है, मैं तो पहली दफा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप ये नोटिस करें, आपको यहाँ पे ये भी सिखाया गया कि अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनता है, अपवर्क कैसे चलता है, ये देखिए। This is one of our recorded sections from our flagship trainings. ये गिग बनाना सिखा रहा है, जैसे फाइवर के ऊपर काम करते हैं। फिर इसके अलावा ये सेशन जो है वो आगे जाकर अपवर्क के ऊपर भी ट्रेनिंग देता है कि अपवर्क कैसे चलता है, कैसे काम होता है, राइट। एंड इफ यू आर इनटू के अच्छा यार मुझे तो अपवर्क का अकाउंट बनाना है, पहले मुझे तो अकाउंट ही नहीं बना हुआ, तो आप जाएं यहाँ पर, और फाइजा यूसुफ की टॉक है यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड। ये तो इन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बनाना सिखाया कि भाई आप अपवर्क पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो आधे घंटे के अंदर आपको ये सिखाएंगे कि भाई आपने कौन से स्किल्स लगाने हैं, किस तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल पर लिखना है, और क्लाइंट को क्या दिखता है, आपने किस तरह से चीजों को लिखना है। बहुत लंबी लंबी बातें लिखनी है, शॉर्ट नोटिस में चीजें लिखनी है, पुटिंग द राइट प्राइस टैग, यानी कि क्या प्राइस टैग होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई गई। आई होप कि इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टैबल्यू या पावर बीआई जानता हूँ, तो कैन आई क्रिएट माई ओन एजेंसी, तो आप ये सुन सकते हैं कि बीआई कंसल्टेंट जो है वो ऑनलाइन क्या काम कर रहा है।
ये कम्प्लीटली बिजनेस इंटेलिजेंस के जरिए आपको फ्रीलांसिंग का चीज सिखाएगा। तो आई होप कि आपका सवाल सफिस हुआ होगा। एंड दिस इज ऑल, एनी कहीं भी आप मौजूद है तो आप देख सकते हैं जी। कोई अगर कुछ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खैर। मैंने आपसे ये पूछना था कि जो जिन बच्चों को काम आता है, फॉर एग्जांपल उनके कुछ बेसिक्स ऑलरेडी स्ट्रांग हैं और जो डिग्री में ऑलरेडी हैं बच्चे, जिन्होंने मशीन लर्निंग या तो पढ़ी है या फिर कहीं से सीखी है, बेशक coursera क्यों ना हो, तो उनके लिए आप क्या ऑफर कर सकते हैं? अगर मैं इस तरह एक यूज केस सिनेरियो आपको दे दूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं जो 7th सेमेस्टर में है, उसने कर लिया है कि coursera से एक स्पेशलाइजेशन, जो एंड्रू एनजी हैं, आप जानते भी होंगे, मशीन लर्निंग में ऑलरेडी उनका बहुत नाम भी है, इज बिन coursera's को फाउंडर और अब उनकी अपनी भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम तो यहाँ से पढ़ लेते हैं और चीज़ सीख लेते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लेते हैं केगल डेटा सेट्स पे, बट जो विद इन कंट्री हमारे पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए है, क्या वो अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों के लिए? ओके, सो इसका जो इनसाइड द कंट्री अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें दो एरियाज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कराची doti.com/careers पे। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस वेबसाइट के ऊपर, इस डैशबोर्ड के ऊपर सिर्फ कराची की जॉब्स आ रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये लोकल जॉब्स आ गई, ठीक है। फ्रीलांसिंग पे भी जा सकते हैं। अगेन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो गाइडेंस पढ़ सकते हैं। अब ये 2 मिनट बीतेगा, ये डैशबोर्ड लोड हो जाए तो आपको नजर आएगा कि आप अपना स्किल टाइप करेंगे और यू कैन ऑलवेज सी द जॉब। सही, ओके। अगेन जॉब मिलेगी कैसे, लोकल जॉब्स कैसे मिलेंगी फ्रीलांसिंग में? अच्छा, इसके अंदर हमने इंटीग्रेशन भी की हुई अपवर्क से। तो अपवर्क पे अगर कोई पावर बीआई की जॉब आती है तो वो यहाँ पे डायरेक्टली उठ के आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब उसकी सीन क्या है कि अपवर्क ने रिसेंटली अपनी जो RSS फीड है वो क्लोज कर दी है। सो नाउ व्हाट वी आर वर्किंग कि हम अपवर्क की API पे काम करें और वहां से फिर जॉब्स लेते हैं। तो कुछ अरसे तक अपवर्क की शायद जॉब इस पे नहीं आ रही हो, लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि यार मुझे ना टैबल्यू आता है, तो मैं इधर जाता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट सी टैबल्यू। तो अब आपको नजर आ रहा है कि अभी इस वक्त कोई भी जॉब नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि हमने ये वाले जो फीचर ऑन किया था ना, वो ऑन किया था अपवर्क के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि उस पर कोई भी कीवर्ड के अंदर अगर टैबल्यू आ रहा होगा तो वो जॉब आपको यहाँ पे लाके डिस्प्ले कर देगा। तो कुछ लोग तो यहीं पे ताक लगा के बैठते थे कि जब डैशबोर्ड रिफ्रेश होगा डायरेक्ट जॉब आएगी, यहीं से खोल के अपवर्क पे ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो टाइम टू अप्लाई बहुत कम हो जाता था और ये सब चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं यार नहीं मैं डेटा इंजीनियर हूँ भाई, तो डेटा इंजीनियरिंग के स्किल्स हैं तो आप जो है वो यहाँ पर आ गए। आपको डेटा नजर आ गया, एज़्योर डेटा इंजीनियर है, आपको एज़्योर डेटा इंजीनियर, डेटाब्रिक्स मिल गया, सीनियर डेटा इंजीनियर मिल गया, डेटा इंजीनियर BI मिल गया। तो इस तरीके से ये पूरा डैशबोर्ड काम करता है। अब क्या होता है कि वक्तन फवक्तन हमारे वॉलंटियर्स को अपडेट करते रहते हैं और फिर ये चीजें चलती हैं। इसके अंदर दो चीज, एक फ्रीलांस जॉब्स, दूसरी जो लोकल जॉब्स हैं वो यहाँ पे कराची की है। व्हाट वी विल डू इज कि हम इस्लामाबाद की जॉब्स भी यहाँ पे ऐड करना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उससे फायदा ये होगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो लोकल रोल्स हैं वो भी आपको देखना शुरू हो जाएंगे। तो अगेन यू कैन ऑलवेज थिंक, फिर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा देंगे कि भाई आपने रोल कहाँ से करना है, कराची इस्लामाबाद कहाँ पे करना है, ठीक है। सही हो गया जी, बहुत शुक्रिया। और क्या है, गिटहब पे पोर्टफोलियो बनाए। जब तक आप सामने ये देखिए, ये पूरी डेटा साइंस जो है ना वो स्किल्स की दुनिया है। जब तक आप स्किल्स डेमोस्ट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा, राइट। तो आपने गिटहब पे जाना है, पोर्टफोलियो बनाने हैं, एक एक सिनेरियो लेना है, कोई भी फिक्टिशियस ले लें। यार मैं आज स्टॉक मार्केट की API से डेटा लेकर आता हूँ या स्क्रैप करता हूँ उनकी वेबसाइट को और फिर वहां से डेटा लाता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई वेरियस सेक्टर वाइज क्या चल रहा है। पीपल वुड बी इंटरेस्टेड कि हाँ यार इसको स्क्रैपिंग भी आती है वाकई में और ये पाइपलाइन बनाना भी जानता है। तो आई होप कि काफी लोगों को ये गाइडेंस मिल गई होगी। मैं खुद बीइंग अ नॉन CS, आई हैव वॉन द जॉब्स विद माय टैबल्यू प्रोफाइल, विद माय गिटहब। इसी के जरिए जॉब मिलती है। इसके अलावा कोई भी तरीका हो ना, रेफरेंस पर्ची भी हो, तो आपको इंटरव्यू सीट तक चीजें मिल जाएंगी। लेकिन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करने से फायदा ये होता है कि जब आप बोलते हो तो आपकी वोकैबुलरी से समझ में आ जाता है कि इस बंदे ने काम किया हुआ या नहीं किया हुआ, राइट। ठीक है खयाम? जी जी, समझ आ गई आपकी बात, बहुत शुक्रिया जी।
All right. So shall we continue to MLOps? Everyone is ready? तो comment कर दें MLOps. जितने लोग MLOps को स्टार्ट करवाना चाहते हैं वो जल्दी से लिख दें MLOps. कमेंट के अंदर लिख दें MLOps. दोबारा से मैंने स्क्रीन शेयर की है, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. कितने लोगों को मशीन लर्निंग का ऑलरेडी आइडिया है? हाउ वी कैन डू दैट बेसिकली रेज हैंड के जरिए. अच्छा, एक काम करते हैं, एक्टिविटी ऐसे रखते हैं कि कितनों लोगों को मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन का ऑलरेडी आइडिया है कि कैसे होती है, एंड टू एंड क्लासिफिकेशन कैसे रन होती है. तो जो जानता है ना वो रेज हैंड कर ले. हम रेज हैंड के काउंट से देख लेंगे कि कॉल में कितने लोग. 44 लोग हैं. जो लोग क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं वो रेज हैंड कर दें. पाम का साइन होगा, उसको प्रेस कर दें. छह 25% लोगों को तो जानना चाहिए. पास के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह. कौन एडमिन बता सकता है कि ये कितने कितने सालों के वेरियस बैचेस हैं? लाइक फर्स्ट ईयर है, कोई 7th सेमेस्टर है. व्हाट्स द वैरायटी अवेलेबल? All of them range from the like previous batch जो graduate हो चुका है 2019 batch से लेकर till the latest batch जो अभी है 2024 का batch. So like you can have 5 batches all in all over here. ओके ऑलराइट. तो भाई 7 लोगों ने हाथ उठाया 44 में से. क्या हो गया भाइयों? हाथ या तो शाय हो रहे हैं, उठा नहीं रहे. तो मेरा दोस्त बोले कि यार तूने तो प्रोजेक्ट में मना किया था, तुझे तो MLOps आती नहीं, क्लासिफिकेशन आती नहीं. ऑन अ लाइटर नोट होता है ना ग्रुपों के अंदर, यार तुमने तो बताया था, तुम्हें नहीं आता. चलो स्टार्ट करते हैं. मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन का भी आइडिया दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्लासिफिकेशन होती क्या है. तो आई एम ऑल एक्साइटेड. ओके, सो दिस इज द इनिशियल स्लाइड एंड दिस इज द एंटायर थिंग. ये हमारा सेशन प्लान है. पहले हम मशीन लर्निंग का वर्कफ्लो समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या सॉल्व करना है MLOps के जरिए. ठीक है, फिर उसको कैसे कैटर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे फॉर्म में ट्रेन करेंगे कि वो MLOps के अंदर रजिस्टर हो जाए, और फिर अपना सॉल्यूशन डिप्लॉय करके भी देखेंगे स्ट्रीमलाइन के ऊपर. ठीक है, और MLOps में और क्या क्या चीजें हैं मैं तो आपको छोटा सा एक सर्कल कराऊंगा. तो MLOps में और क्या क्या चीजें वो सब भी हम देखेंगे. सबसे पहले मशीन लर्निंग का वर्कफ्लो अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है? सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटअप होता है जिसके अंदर आप बिजनेस गोल्स डिफाइन करते हैं. आप कहते हैं यार मैंने ये वाली चीज प्रेडिक्ट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर का चर्न प्रेडिक्ट करना है. जस्ट एन एग्जांपल. नंबर 2, डेटा प्रिपरेशन करनी पड़ती है. अच्छा यार, कस्टमर चर्न के लिए मुझे वेरियस डेटा पॉइंट्स लाने पड़ेंगे कि उस कस्टमर का बैलेंस कितना है, उसका जेंडर क्या है, और उसने हमसे सब्सक्रिप्शन कितनी ली हुई है, लास्ट ट्रांजैक्शन उसने हमसे कब की थी. तो इस तरह के बहुत सारे हमें डेटा कलेक्शन फीचर करने पड़ेंगे. फिर बहुत सारे फीचर्स जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें क्लीनिंग करनी पड़ती है. यानी कि यार ये फीचर तो आधा खाली आ गया तो हम इसको यूटिलाइज तो नहीं कर सकते मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, या ये फीचर जो है वो 90% तो बराबर है लेकिन 10% जो है वैल्यूज इंक्लूड करनी पड़ेगी, यानी कि मिसिंग वैल्यूज को फिल इन करना पड़ेगा. थर्ड इज फीचर इंजीनियरिंग. यार मेरे पास ये अवेलेबल तो है, हाउसिंग का डेटा है, लेकिन यार प्राइस आ रही है और स्क्वायर फीट आ रहा है, तो प्राइस पर स्क्वायर फीट जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो लेट मी क्रिएट अ न्यू फीचर जो कि फीचर इंजीनियरिंग कहलाता है. राइट. एंड फोर्थ इज स्प्लिट द डेटा. यानी कि जब भी आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो आप ये ऑर्केस्ट्रेट करते हैं कि रियल लाइफ में जो रियल डेटा होगा वो तो अननोन होगा. तो आप मशीन लर्निंग के अंदर एक हिस्सा मॉडल को दिखाते हैं कि हाँ भाई ये देख लो, इससे लर्निंग कर लो, और फिर दूसरे हिस्से पे उसको टेस्ट करते हैं कि भाई आपकी एक्यूरेसी क्या है. एंड देन देयर इज अ बैक एंड फोर्थ थिंग जहां पर आप हाइपर पैरामीटर की ट्यूनिंग करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल को सेट करते हैं. ये टेस्ट, ये ट्रेन और वैलिडेशन सेट के दरमियान हो रहा है. राइट.
और फिर उसके बाद आप जाते हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ, जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ईआरपी है या आपने फ्लास्क का एक एपीआई लिख दिया, जिसके जरिए होता है कि जब भी ईआरपी के अंदर एंट्री होती है सारी चीजें ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द डे एक कॉलम है वो एपीआई कॉल करता है, सारे वेरिएबल्स को अपने अंदर ले जाता है, प्रेडिक्शन करके वहीं पे दिखा देता है कि ये कस्टमर जो है वो चर्न हो जाएगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल ये लीड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी फॉर वर्किंग इन सेल्सफोर्स। सो होपफुली आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि मशीन लर्निंग की एंड टू एंड साइकिल होती क्या है। अब आज जो हम डेटा सेट देख रहे हैं वो टेलको चर्न का डेटा है, यानी कि आपके पास मोबिलिंग, जैस, वारेद, यूफोन, टेलीनॉर, एवरीवेयर, राइट। हम उनके पैकेजेस लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स छोड़ के चले जाते हैं, तो छोड़ के चले जाते हैं तो वो सिम अबैंडन कर देते हैं, तो चर्न यस हो जाता है। और अगर सिम अबैंडन नहीं कर रहे हैं, मतलब कि सिम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज चर्न नो, राइट। एंड व्हाट वी हैव अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स लाइक ऑनलाइन सिक्योरिटी उसने परचेज की है कि नहीं की है, डिवाइस प्रोटेक्शन है कि नहीं, टेक सपोर्ट लिया है उसने नहीं, उसने स्ट्रीमिंग टीवी की सर्विस ली है नहीं ली है, या वो अपनी मेल चेक करता है या बैंक से ट्रांसफर करता है। तो इट्स मोर ऑफ अ डेटा, टोटल मंथली चार्जेस क्या बनते हैं। तो आपको पता है कि किसी के बहुत ज्यादा चार्जेस बन जाए तो ही इज मोर लाइकली टू बी चर्निंग एज वेल, राइट। तो अब एक चीज है, ये सारी चीजें हमारे प्रिडिक्टर्स हैं, ये जिसको एक्स से डिनोट किया हुआ है, और वाई क्या है, जिसको वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, and f of x is actually being machine learning, right? So that will figure out the relationship between the churn and these variables fast. But क्या machine learning के अंदर models अंग्रेजी समझते हैं? DSL real life में machine learning model, DSL fiber optic, month to month, 1 year, ये सब चीजें समझता है कि नहीं समझता? नहीं। तो ऐसी सूरत में हम ये वेरिएबल्स डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, हमें कुछ फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी जिसके अंदर हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इनटू मशीन कंज्यूमेबल फॉर्मेट। व्हाट इज द मोस्ट नोन मशीन कंज्यूमेबल फॉर्मेट? चैट पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, बाइनरी और टेक्स्ट डेटा। मशीन बाइनरी समझती है या टेक्स्ट डेटा समझता है? Yes, machine understands numbers. तो हमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स को नंबर्स देने पड़ते हैं, नंबर्स के जरिए वो अपने अंदर की पूरी लॉजिक को एग्जीक्यूट करते हैं, उस पर ग्रेडियंट डिसेंट चलता है, सब चीजें होती हैं, और फिर वो ऑप्टिमाइजेशन करके एट द एंड क्लासिफाई करते हैं। तो दैट्स द थिंग वी वांट टू पुट इनटू। तो हम एक पाइपलाइन बनाएंगे जो कि हमारे इस तरह के डेटा सेट को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मशीन कंज्यूमेबल फॉर्मेट। अगर आप लोगों ने कुछ ना कुछ मशीन लर्निंग की है तो आपको आइडिया होगा कि कुछ वेरिएबल्स 1 और 0 पे ब्रेक हो रहे हैं तो 1 हॉट एनकोडिंग कहलाता है, कुछ वेरिएबल्स जो है वो 0, 1, 2 हो रहे हैं तो वहां पर हम ऑर्डर्ड एनकोडिंग बोलते हैं, राइट। और कुछ जगहों पे हम जो है वो डायरेक्टली चीजों को लेके जा रहे होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन कुछ वेरिएबल्स को डायरेक्टली नहीं भी लाया जा सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग एन एज वेरिएबल एंड ऑल्सो द सैलरी वेरिएबल। अब सैलरी लाख से लेकर 5 लाख तक वेरी कर रही होगी, उससे भी जाएगी ऊपर, लेकिन एज जो है वो यूजुअली फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ टीनेज डेटा तो 20 इयर्स से लेकर 50 इयर्स तक जा रही होगी, राइट, 60 इयर्स तक जा रही होगी। तो क्या ये दोनों नंबर्स में मवाजना है? एक का स्केल हंड्रेड्स में है और एक का स्केल लाखों में है, तो ये दोनों मॉडल के अंदर नहीं जा सकते बिकॉज ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो बस्ट हो जाएगा। तो व्हाट वी विल नीड, हमें नंबर्स को स्केल करना पड़ेगा। तो हम इसको कहते हैं फीचर स्केलिंग, जिसके अंदर हम जो है वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं ताकि हमारी जो लॉग वैल्यूज है वो 0 से 1 के दरमियान आ जाए, राइट। यहां तक अगर आपको सारी बातें क्लियर है तो प्लीज कमेंट कर दें क्लियर, और अगर इसी के दरमियान कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। डोंट बी शाय, अगर आपका सवाल है और सब लोग क्लियर लिख रहे हैं तो प्लीज आप सवाल पूछ लें, चाहे तो कमेंट में पूछ लें या माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। हाउ डज डिफरेंट स्केल्स अफेक्ट ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल? यस, दोनों का स्केल एक लेवल पे होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री मॉडल्स हैं या आपके रिग्रेशन के मॉडल्स हैं, उनके अंदर मसला होता है कि जब अगर फॉर एग्जांपल एक का वेट डिफरेंट स्केल पे हो और दूसरे का वेट डिफरेंट स्केल पे हो तो मॉडल्स कैन नॉट एक्चुअली रिजॉल्व। जो ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजर यूज होता है दैट कैन एक्चुअली बस्ट।
ऑलराइट, तो होपफुली सब लोगों को क्लियर है। मुझे लग रहा है बाकी जमात डायरेक्ट नमाज पढ़नी चली गई है। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू मशीन लर्निंग। तो हमने ये नंबर्स के फॉर्म में डाल दिया और चर्न को हमने येस और नो के फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि वो अभी हमारा मॉडल एक्सेप्ट कर रहा है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है भाई? आपको पता है कि एक नॉर्मल सी मशीन लर्निंग की पाइपलाइन क्या होती है यार? पहले आपने ट्रेनिंग करी, फिर सब कुछ किया, फिर सारी चीजें वैलिडेशन करी, फिर ये चीजें। जब टेस्टिंग की बारी आती है तो क्या टेस्टिंग में आपको ऐसा ट्रांसफॉर्म डेटा मिलता है क्या? नहीं। तो फिर आपका मशीन लर्निंग मॉडल में आप ओरिजिनल डेटा डालने की कोशिश करते हो, वो बोलता है मैंने तो ये फीचर देखे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उन फीचर्स पे तो आपने ट्रेन नहीं किया, आपने तो ट्रेन किया था ट्रांसफॉर्म फीचर्स पे। तो आपको फिर एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा यार, टेस्टिंग के ऊपर भी वही नॉर्मलाइजेशन करो, यही चीजें करो, ये करो, फला करो, और सारी चीजें कर कर आकर फिर जो है वो आप सेव करते हो। ऐसा होता है ना? तो फिर उसके बाद आप प्रेडिक्शन कर पाते हो टेस्ट डेटा के ऊपर। अब ये एक चैलेंज है। दैट इज द समरी ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ट्रेनिंग के दरमियान हम इनपुट डालते हैं, फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फीचर्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में फीड करते हैं, वो क्लासिफायर मॉडल में जाता है, अगेंस्ट द लेबल्स देखता है। जब प्रेडिक्शन होती है तो वो क्या करता है? इनपुट लेता है और फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उसको बिल्कुल अलाइन करता है कि भाई मशीन लर्निंग मॉडल को दे दो, और फिर उसके अगेंस्ट में लेबल प्रेडिक्ट करता है। तो अगर ये वाली जो पाइपलाइन है ये मेरी कस्टम लिखी हुई होगी तो इन दोनों पाइपलाइंस के अंदर डिस्कनेक्ट आ जाएगा और मेंटेनेबल भी नहीं होगी। कभी इधर मैंने लॉग नॉर्मलाइजेशन कर दिया कि एक वक्त आया मैंने V1 लिखा था, उसमें अलग नॉर्मलाइजेशन यूज की हुई थी, V2 लिखा तो अपडेट कर दी, नीचे ला के अपडेट करना ही भूल गया। तो अगर मैं अपडेट करना ही भूल जाऊंगा तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी डिफरेंट, मशीन लर्निंग के लिए हो जाएगी वैल्यू डिफरेंट। जब वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी तो देयर वुड बी अ रॉन्ग लेबल कमिंग इन। तो इन सारे चैलेंजेस को उबूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई इनपुट के अंदर आप तमाम फंक्शंस, इनपुट के अंदर तमाम फंक्शंस डालोगे, ठीक है, तमाम फंक्शंस की एक फाइल बनाओगे, सबको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर आप मॉडल की पाइपलाइन बनाओगे, फिर आप करोगे इंपोर्ट करोगे सारे फंक्शंस, और फिर आप प्रोडक्शन के ऊपर ये फाइल्स एक्सचेंज करोगे। तो डेटा साइंटिस्ट ये दो चीजें बनाएगा और वो डेटा इंजीनियर जो डिप्लॉय कर रहा होगा उसके साथ वो या ड्राइव पे रख दो फाइल, तो वो वाला सिलसिला होगा, या मेल कर दो, ठीक है, या गिटहब पे सबमिट कर दो, ठीक है। द प्रॉब्लम्स, इनकंसिस्टेंसी आएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ऑब्वियसली रिप्रोड्यूसिबल नहीं होता। जैसे आप फॉर एग्जांपल नॉर्मलाइज करते हो, तो जब नॉर्मलाइज करते हो तो वो लर्न कर लेता है कि रेंजेस क्या है जिसके ऊपर मैंने सीखा है। तो अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट डेटा उस रेंज से बाहर होगा तो वो सही रिप्रोड्यूस रिजल्ट्स को नहीं कर पाएगा। वर्जनिंग करना तो अजाब है इस फाइल बेस के अंदर। क्या आप गिटहब के ऊपर अपडेट करते रहोगे फाइल्स, और फिर अगर फॉर एग्जांपल आपने एक नया फंक्शन ऐड कर दिया, या आपने बोला कि यार नहीं इसके अंदर मैं ये वाली फीचराइजेशन भी ऐड कर रहा हूं, तो उसके लिए एक नया फंक्शन बीच में आ गया, तो क्या करना पड़ेगा? डेटा इंजीनियर को वो पाइपलाइन के दरमियान एक और नया फंक्शन डालना पड़ेगा, वरना पाइपलाइन तो चलेगी नहीं। फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी का भी मसला, कि ऑब्वियसली ये आपका ये जिस तरह के मसले मसाइल हैं तो उस हिसाब से कोड आपका स्केल ही नहीं कर सकता कि आप मल्टीपल जगह पे डिप्लॉय कर दो। तो वी नीड अ सिंगल पैकेज, एक पैकेज हो जिसके पास मैं वैल्यू डालूं और यहाँ से पैकेज वैल्यू निकले। तो ये सिंगल पाइपलाइन का नाम होता है sklearn पाइपलाइन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया है तो प्लीज कमेंट कीजिए sklearn पाइपलाइंस। हमारा भी आपके सवाल का जवाब आएगा, थोड़ी देर में आएगा। ब्रिलियंट, थैंक यू फॉर फीडबैक। अच्छा जी, हु लव्स द मारियो? सबसे पहली पाइपलाइन मारियो में थी, यहां से गया और वहां से बाहर आया, राइट? दैट्स व्हाट पाइपलाइंस एंड रेलरोड्स एंड सिस्टम्स आर, राइट? तो हम वही पाइपलाइन यूज करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमारा ओरिजिनल डेटा आएगा पाइपलाइन के शुरू में, फिर हम अपने प्रोसेसेस को रन करेंगे, फिर कैटेगोरिकल के साथ अलग ट्रीटमेंट करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ अलग ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसके बाद अगर क्लास इम्बैलेंस है तो डेटा को बैलेंस भी करेंगे, और फिर उसके बाद उसके ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल लगाएंगे। अब ये कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है, बट सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि ये पाइपलाइन है, तो आप इस पाइपलाइन में कुछ भी बना सकते हो। आगे आपको दिखेगा हमने कुछ और पाइपलाइन बनाई, सॉरी। तो होता क्या है कि आप करते ये हो कि इनपुट डेटा डालते हो और इनपुट डेटा दूसरा डालते हो, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म कर लेगा, टू आ रहा है इसमें, गुड आ रहा है इसमें, आई एम आ रहा है इसमें, नो आ रहा है, 1 और 2 एग्जांपल्स की बात कर रहा है, राइट? फिर इसके ऊपर क्लासिफायर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं,
तो आपको नजर आया कि पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है, यानी कि फॉर एग्जांपल S2 में अगर लिखा होता आई हेट दैट, तो मशीन लर्निंग को पहले अगर सिखाया गया है कि हेट का वर्ड आएगा तो फॉर एग्जांपल वो क्या होगा, नॉट मतलब नेगेटिव कमेंट होगा, आई हेट योर ऐप। तो मैंने गूगल जो फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर है उससे मैंने कमेंट स्क्रैप किए कि भाई मेरी ऐप के बारे में लोग क्या ख्याल रखते हैं, तो उसने लिखा भाई आई हेट दिस ऐप। अच्छा, एक सीन हुआ कि भाई मैंने एक और देखा कमेंट, उसमें लिखा आई डू नॉट हेट दिस ऐप, आई जस्ट लव इट। अच्छा, पॉइंट ये है कि उसके अंदर लव भी आ गया, तो लव पॉजिटिव सेंटिमेंट था, हेट जो है नेगेटिव सेंटिमेंट था। अब यहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो बेस्ड ऑन के कितने उसने लव और हेट वाले एक साथ लेबल्स देखे उसकी बेसिस पे चलेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अभी आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा कि डेटा गोज इन प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मर्स, एस्टिमेटर्स चलते हैं और फिर उसके बाद आउटपुट आता है फिट प्रेडिक्ट। तो कोडिंग वॉक थ्रू स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम करेंगे ये कि एक ट्रेनिंग पाइपलाइन बनाएंगे, जिसके अंदर पूरी पाइपलाइन हम बना देंगे, फिर बाद में उसी पाइपलाइन को यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू मॉडल प्रेडिक्ट। ओके, अब हमारे पास ना कई तरह की चीजें होती हैं, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा ना कोड की तरफ लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये डेटा उठा लिया एंड इफ यू वांट टू सी दिस डेटा, एक्चुअली मेरे साथ आप चल नहीं पाएंगे इतने पेज पे, तो आप सिर्फ ये डेटा अपने पास रख लें एंड देन यू कैन लेटर रेप्लिकेट दिस एंटायर थिंग। ठीक है, सबसे पहले मैंने df.head कर दिया, क्या हुआ, डेटा फ्रेम की शुरू की 5 रॉस मेरे पास डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो वही मेरे पास कस्टमर आईडी है, जेंडर है, सीनियर सिटीजन का स्टेटस है, पार्टनर है, एवरीथिंग इज देयर एंड इन द लास्ट देयर इज अ चर्न थिंग। मैंने क्या किया, मैंने डेटा को तमाम कॉलम्स को रीनेम करके अपर कर लिया, यानी कि अपर केस कर लिया। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सीनियर सिटीजन छोटा लिखा आ रहा है, पार्टनर रनिंग कैप्स में नजर आ रहा है। कंसिस्टेंट करने के लिए अब जब मैं df.info करूंगा तो ये सेम चीज आपको ये नजर आएगी कि ये कैप्स के अंदर आ गई है। और अगेन df.info क्यों करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि भाई कितनी नल वैल्यूज है क्या है। तो इत्तेफाक ये है कि हमारे पास एक भी नल वैल्यूज मौजूद नहीं है, बिकॉज इस डेटा के अंदर मैं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाह रहा था, राइट। फिर उसके बाद हमने बोला कि यार एक काम करो pd डॉट, अब ये मैं वो पाइपलाइन लिख रहा हूँ जो यूजुअली कन्वेंशनल तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला यार टोटल चार्जेस जो है वो, अगर आप नोटिस करो ना, टोटल चार्जेस जो है वो ऑब्जेक्ट में आ रहा है। यार टोटल चार्जेस तो मैंने देखा था, ये तो नंबर था, ये देखो टोटल चार्जेस तो नंबर था। तो भाई इसको आगे मशीन लर्निंग मॉडल में ले जाना है, इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल कोई स्केलिंग लगानी है या नॉर्मलाइजेशन लगानी है, तो कोई भी चीज करने के लिए आपको इसकी वैल्यू, तो मैंने बोला कि अच्छा यार मैं इस डेटा के अंदर टोटल चार्जेस को कोट्स कर देता हूँ, एरर को दबा दो और str.strip करके इस डेटा को न्यूमेरिक कर दो। ठीक है, अब जब मैं ये चलाता हूँ तो मुझे नजर आया कि मेरा टोटल चार्जेस क्या हो गया, फ्लोट 64। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन मैंने डेटा को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक x और एक y। x में मैंने चर्न को हटा दिया जो कि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल में जाना है, और y के लिए मैंने डेटा.चर्न रख लिया। यहाँ पर मैंने डेटा टाइप्स को सेलेक्ट किया, तो मैंने नजर आया कि यार मेरे पास जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ये सेलेक्ट डेटा टाइप एक पांडास का मेथड है, तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, तमाम न्यूमेरिक वेरिएबल्स यहाँ से खींच सकते हो। अब आपको दोबारा रिकॉल कराता हूँ कि अगर आपने टोटल चार्जेस को सही से डील नहीं किया होता तो टोटल चार्जेस तो न्यूमेरिक वेरिएबल्स की लिस्ट में नहीं आता, और फिर वो बेचारा चले जाता कैटेगोरिकल में, वहां पे बेचारा वन हॉट इनकोड या जो भी हो रहा होता तो वो गलत हो जाता। तो इसीलिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ तक ये आ गया। इसके अलावा सीनियर सिटीजन की वैल्यू काउंट है। अब सीनियर सिटीजन जो है ना वो मेरा 0 और 1 में आ रहा है। आप ये नोटिस करो, सीनियर सिटीजन 0 और 1 है, तो भाई ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं, ये तो एक बूलियन वैल्यू है, बस 0 1 से चल रही है। तो मैं इसको व्हाट नॉट के मैं इसको जो है वो कैटेगोरिकल की तरह ट्रीट करूं, राइट। तो इसको ट्रीट करने के लिए मैंने मैपिंग कर दी। मैपिंग क्या करी है मैंने, आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। मैपिंग मैंने क्या की है कि भाई 1 को यस कर दिया और 0 को नो कर दिया। अब मैं नोटिस कर रहा हूं तो मेरे पास 0 पे 5901 रोज थी और नो पे 5901 है, इसका मतलब सक्सेसफुल मैपिंग हो गई है। ठीक है, अब ये सारा काम करने के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पूरी इंस्ट्रक्शन डेटा इंजीनियर को देनी पड़ेगी, फंक्शंस बना के देने पड़ेंगे, भाई पहले ये चलाना, फिर ये करना, फिर ये करना। टेस्ट डेटा की बात कर रहा हूँ, राइट। मॉडल तो आप उसको दे दोगे, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये सारे मसले मसाइल है। अब मैंने बोला कि डेटा टाइप्स में ऑब्जेक्ट उठाओ, तो मैंने बोला कि सीनियर सिटीजन को मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया था, तो अब वो इसका पार्ट बन गया ऑब्जेक्ट, यानी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का पार्ट बन गया। यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स आ गए एक्सेप्ट फॉर चर्न एंड दोज हु वर न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है,
अब कैटेगोरिकल फीचर्स के अंदर मैंने जाकर इन कॉलम्स को सेव कर दिया और न्यूमेरिकल वैल्यू कैटेगोरिकल फीचर्स के लिए मैंने लिस्ट के अंदर सीनियर सिटीजन को अलग से ऐड करवाया, बिकॉज शुरू की पाइपलाइन में तो वो था ही नहीं अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर करवाने से मुझे क्या आया, सीनियर सिटीजन भी मेरे कैटेगोरिकल का पार्ट बन गया। अब ये सारी कस्टमाइजेशन देख रहे हैं, ये प्रोडक्शन में बड़ा मसला करेंगी क्योंकि मैं कस्टम कोड बहुत सारा लिखता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आया तो मैंने चेक किया कि सीनियर सिटीजन यहाँ से निकल गया है ना, तो मैंने यहाँ से डॉट कॉलम्स डिफरेंस किया तो सीनियर सिटीजन निकल चुका है, राइट। अब मैं इस डेटा को स्प्लिट करूंगा, टेस्ट रेंज स्प्लिट किया, आप सबको मालूम है ये टेस्ट रेंज स्प्लिट क्या होता है, ठीक है। और एक काम करता हूँ भाई, नजर देखिए तो सही कि भाई मेरा जो डेटा है उसमें आ क्या रहा है, इसके मेंबर्स क्या हैं, इसकी फील्ड के अंदर वैल्यूज क्या क्या आ रही है। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, एक फंक्शन बनाया, एंड दिस फंक्शन इज क्रिएटेड विद चैटजीपीटी, आप भी क्रिएट कर सकते हो। बस सिर्फ मैंने एट अ ग्लैंस डेटा देखने के लिए काम किया है कि भाई मेरा जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट के कॉलम के अंदर 3 तरह की वैल्यूज अवेलेबल है, 1 ईयर, 2 ईयर, मंथ टू सबमिट, मंथ टू मंथ, ठीक है। तो ये एक तरह का सॉफ्ट ईडी है, लेकिन मैंने टेबल फॉर्मेट में कर लिया, ठीक है। वरना आप इसके चार्ट्स प्लॉट कर सकते थे कि उसमें क्या क्या मेंबर्स हैं। मैंने इस डेटा को डिक्शनरी में कन्वर्ट किया है, क्यों किया है थोड़ा सा बताता हूँ। अब बाद में मैंने इसको एक्सपोर्ट किया डेटा इंजीनियर के लिए, यानी डेटा इंजीनियर को मैं बताऊंगा सही ना कि कौन से फीचर्स कैटेगोरिकल हैं जिसके ऊपर वो कैटेगोरिकल की फंक्शंस लगाएगा, और डेटा इंजीनियर को मैं बताऊंगा कि न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कौन से जिसपे वो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स लगाएगा। तो उसको ये डिक्शनरी देना जरूरी है कि नहीं, देना जरूरी है, वरना उसको इलाम तो नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, पिकल किया और मैंने फीचर डिक्शनरी को डंप करवा दिया। फीचर डिक्शनरी को जैसे ही मैंने डंप कराया तो इसके नतीजे में क्या हुआ भाई, मेरे पास एक अदद फाइल बन गई जिसको हम कहते हैं फीचर। आपको तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये पिकल हुआ है, मतलब सीरियलाइज हुआ है। अगर आपको पाइथन के अंदर सीरियलाइजेशन का आइडिया नहीं है तो आप थोड़ा सा ऑनलाइन देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप मशीन लर्निंग मॉडल एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। वैसे अभी आप थोड़ा सा सेशन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा करता क्या है, राइट। फिर उसके बाद अब यहां तक आपने सारे मामला देखे, तो आपको क्या लगता है कि ये अप्रोच अच्छी है या बुरी है, जिसके अंदर मैंने कस्टम फंक्शन इतने सारे लिखे हैं, सब कुछ लिखा है, डेटा इंजीनियर्स को बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, ये क्या होगा, किस तरीके से काम होगा, तो ये अप्रोच अच्छी है नहीं। तो अगर जिसको अच्छी लग रही है तो वो गुड कमेंट कर दे, और जिसको ये अप्रोच बुरी लग रही है वो बैड कमेंट कर दे, ठीक है। और जिनके सवालात है वो ऑब्वियसली मैं 2 मिनट इसके बाद देता हूँ। तो गुड वर्सेस बैड हो जाए भाई जल्दी से, जिनको अच्छी लग रही है वो गुड कमेंट कर दे, जिनको बैड, फाहिमा आपने गुड, ये वही वाली एग्जांपल हो गई कि आई डोंट हेट योर प्रोजेक्ट। इसमें डेटा की इनसाइट ज्यादा अच्छा पता चल रहा है लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स है। हाँ ऑब्वियसली जब आप ईडीए वगैरह कर रहे हैं और सब चीजें कर रहे हैं तो आप ये सारे काम कर लें, पहली दफा जब पाइपलाइन बना रहे हैं तो आपको डायरेक्टली पाइपलाइन पे चढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रोडक्शन में ले जाने के लिए आपको इस तरह से पाइपलाइन नहीं ले जानी चाहिए। तो लेट्स कंटिन्यू विद द कमेंट गुड और बैड, ताकि हम फिर कंक्लूड करके आगे बढ़े। अगर ग्राफिकल अप्रोच भी एडिट हो तो दैट वुड मोर एक्सप्लेनेबल। देखो एक्सप्लेनेशन तो हमारे लिए ना, अभी हम ईडीए के जो स्टेप्स है ना, जो क्लासिफिकेशन के लिए हम करते हैं वो स्किप कर रहे हैं, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न एमएलओप्स राइट नाउ। जब हम बाकी में एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं तो फिर हम तो पहले जाके ईडीए वगैरह सब चीजें करते हैं ना, फिर बाद में जाके प्रोडक्शन की तरफ ले जाने की बात होती है। क्या क्लियर? ऑलराइट, हाँ जी पूछिए। जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए, ऑडियो ऑन कर ले, जल्दी से हो जाएगा। What is the difference between ML op and ML engineer? अच्छा भाई देखो, ML इंजीनियर ML ऑप्स पे काम करता है अच्छा यूजुअली ML इंजीनियर जो है ना वो थोड़ी सी हाइब्रिड टाइप की होता है कि हमारे पास तो इतना बजट नहीं है भाई, तुम ही डेटा इंजीनियर हो, तुम ही ML का मॉडल लगाओगे, तुम ही सब कुछ करोगे, तो मिक्स एंड मैच कर देते हैं। जो बड़े बड़े स्टार्टअप बड़े बड़े कंपनीज होती हैं उनके अंदर वेरी सेग्रीगेटेड रोल्स और टाइटल्स होते हैं, ठीक है। So basically, ML ops is same basically a thing है। process, ML engineer उस प्रोसेस को टेक केयर करता है। हाँ जी फैजान पूछिए। हाँ मैं सही समझ में आ गया। तो लाइक बेसिकली ML ऑप्स एक
एक प्रोसेस है जिस पे एमएल इंजीनियर जो कि एक पर्सन है जो कि उस पे काम करता है। यस, ओह ठीक हो गया। ML engineers जज़ाकल्लाह। specialize in pipeline creations and taking model to production. डेटा साइंटिस्ट वो होता है जो मॉडल बनाता है। तो कभी कभार होता है कि भाई तुम ही डेटा साइंटिस्ट हो और हमारे पास ML इंजीनियर हायर करने का बजट नहीं है, तो तुम ही प्रोडक्शन में डालोगे। अली कैसे आप अपना सवाल पूछिए। अली के सर मौजूद है? चलिए बाद में पूछ लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी फाइल जनरेट हो गई। और अब मैं आता हूँ इस तरफ। अब मैं आपको पाइपलाइन बनाना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से ना एक्चुअली पाइपलाइन बनना स्टार्ट होगी कि भाई ऑफिशियली अगर मैं प्रोडक्शन में काम करने जा रहा हूँ तो उसके लिए पाइपलाइन कैसे बनेगी, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जरा देखते रहिएगा। सबसे पहले मैंने एक अदद वेरिएबल लिया और उसको असाइन कर दिया एक लैम्डा फंक्शन। ये लैम्डा फंक्शन क्या करता है कि जो भी डेटा फ्रेम मिले उसमें से सीनियर सिटीजन को निकालो, उसकी 1 की वैल्यू को यस से मैप कर दो और 0 की वैल्यू को नो से मैप कर दो। आई होप आपको लैम्डा फंक्शंस के बारे में क्लियर है। फिर मैंने नेसेसरी इंपोर्ट्स किए कि भाई फंक्शन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ये मैंने कस्टम फंक्शन लिखा है ना, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन तो नहीं है, ये मेरी कस्टम लॉजिक है मैपिंग की। तो मुझे फंक्शन ट्रांसफॉर्मर चाहिए होगा इस कस्टम फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी ऑफिशियल sklearn पाइपलाइन में। यानी कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स अपनी लॉजिक भी है तो वो भी मैं एम्बेड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ट्रांसफॉर्मर। पहले मैंने प्री प्रोसेसर का स्टेज 1 बनाया जिसके अंदर मैंने कहा यार पाइपलाइन है, पाइपलाइन के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले वो ट्रांसफॉर्म करेगा डेटा को सीनियर सिटीजन के मुताबिक, यानी कि डेटा को रेडी कर देगा पूरा, उसके अंदर सीनियर सिटीजन को यस और नो के अंदर तब्दील कर देगा। फिर उसके अलावा मैंने कुछ वैल्यूज इंप्यूट किए, यहाँ पे फंक्शंस इंप्यूट किए। सिंपल इंप्यूटर, आपको पता है इंप्यूटेशन यानी कि अगर नल वैल्यू है तो उसको फिल कर दे। ठीक है। के बिन्स डिस्क्रिटाइजर, यानी कि अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 1000 तक आ रही है तो वो क्या करेगा, के बिन्स डिस्क्रिटाइजर के अंदर अगर 5 डालोगे तो वो 200 करके बना देगा, 200, 400, 600, 800 और इस तरीके से डिस्क्रीट वैल्यूज बिन्स में बना देगा। ठीक है। एंड देन ऑर्डिनल एनकोडर, आप सबको पता है 0, 1, 2, 3 जितनी भी उसके हिसाब से उसमें क्लासेस मौजूद है तो वो कर देगा। एक मैंने पाइपलाइन बनाई न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए। न्यूमेरिकल वैल्यूज को मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, सबसे पहले अगर कहीं पे न्यूमेरिकल वैल्यूज मिसिंग है तो मैंने इंप्यूट कर दिया है कांस्टेंट वैल्यू से। मैं इसको मीन इंप्यूट भी कर सकता था। ठीक है। मीन करता तो वो क्या करता, तमाम पूरे कॉलम का मीन ले लेता। और कांस्टेंट रखा तो मैंने उसको बताया कि फिल वैल्यू क्या है, 0। यानी कि अगर कहीं पे मेरी वैल्यू फॉर ए 0, which is not also just giving me knowledge, this is just for a engineering perspective कि यार ये मल्टी स्टेप पाइपलाइन भी बना सकते हो। ठीक है। तो मैंने दूसरे का नाम दिया बिन डिस्क्रिटाइज और डिस्क्रिटाइजर यूज किया, 3 बिन्स बनाए। उसके बाद एनकोड किया ऑर्डिनल। ठीक है। और स्ट्रैटेजी क्या है, यूनिफॉर्म। अब आपको जहन में होगा कि ये क्या है, उसको गूगल कर ले और गूगल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें ये कैसे काम करता है। ठीक है। बिकॉज दिस इज नॉट अ मशीन लर्निंग क्लास, दिस इज ML ऑप्स सेशन। फिर आपके पास आता है ऑर्डिनल एनकोड। ऑर्डिनल एनकोडर यूज किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया, अननोन वैल्यू को क्या कर दिया है, np.nan। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू ऐसी है तो उसको मैंने np.nan से रिप्लेस करवा दिया। फिर मैं वन हॉट एनकोडर को लेकर आया। इस वन हॉट एनकोडर के अंदर मैंने पाइपलाइन के अंदर वन हॉट एनकोडिंग डाला और इग्नोर कर दिया अननोन वैल्यूज को। अच्छा, वन हॉट एनकोडिंग कैसे काम करती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, शायद आपको मैं समझा पाऊंगा बड़ी क्विकली। ये नोटिस कर रहे हैं, ये वाली एग्जांपल, सॉरी, ये वाली एग्जांपल आप नोटिस कर रहे हैं। अब नोटिस करें मॉडल ने क्या क्या देखा हुआ वन हॉट एनकोडिंग के लिए, उसने 2 देखा हुआ, गुड देखा हुआ, 2 गुड इज हियर, आई एम देखा हुआ, आई एम आ गया, नॉट देखा हुआ, नॉट आ गया, इम्प्रेस देखा हुआ, इम्प्रेस आ गया, और लेबल उसने 10 कर दिया। राइट। अब ये तो लेबल है, ठीक है, इसको लेबल को भूल जाए, लेकिन ये तो वन हॉट एनकोडिंग हो रही है ना। अब फर्ज करो कि इसके दरमियान आ रहा है आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, हेट इट, तो ना इट इधर मौजूद है ना इट इधर मौजूद है। अब ये अगर टेस्टिंग डेटा के अंदर आ गया, किसी ने कमेंट किया जिसमें मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ,
तो मॉडल क्या करेगा, हेट इट के 2 वर्ड्स हैं उनको इग्नोर कर देगा। अगर ऐसा नहीं करेगा और मॉडल में जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करेगा तो मॉडल कहेगा कि मैंने पहले अनसीन फीचर्स, मैंने ऐसा पहले फीचर्स नहीं देखे, तो मेरे पास कोई लॉजिक नहीं कि आगे मैं इसको कैसे ले जाऊं। ये बात क्लियर है? अगर आपको क्लियर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, लेकिन अगर क्लियर है तो आप क्लियर कमेंट कर दें। और कितने लोग क्लियर है? सा क्विक रिपीट दे देता हूँ। आपका मॉडल जब वन हॉट एन्कोडिंग करता है ना, तो वो कुछ वेरिएबल्स को याद रखता है, यानी कि जो उसने अपने ट्रेनिंग के दरमियान देखे होते हैं। वन हॉट एन्कोडर जब होता है ना, तो उसका जो एपीआई अप्लाई होती है वो डॉट फिट करके होती है। वो फिट क्या होता है, वो लर्न कर लेता है, राइट। तो अगर कोई एग्जाम्पल टेस्टिंग डेटा के अंदर आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेट, तो हेट का वर्ड तो उसने देखा नहीं था एन्कोडिंग के दरमियान, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसको 1 एनकोड करना है या 0 एनकोड करना है? ठीक है, तो ये एक मसला है, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, वापस से आता हूँ टेलको चैनल पे। तो मैंने ये पाइपलाइन बनाई और फिर प्रोसेसर स्टेज 2 के अंदर मैंने किया ये कि कॉलम ट्रांसफॉर्मर लिया। पहला स्टेज क्या था, सॉरी थोड़ा सा माउस खराब हो गया। ओके, पहला स्टेज क्या था, प्री प्रोसेसर स्टेज 1 था, जिसके अंदर हमने सीनियर सिटीजन को ट्रांसफॉर्म किया था। फिर हमने ये छोटी छोटी पाइपलाइंस बनाई, ठीक है, और इन पाइपलाइंस को हमने लोड करके रख लिया। फिर आ जाते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मर पे। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्या करता है भाई, कॉलम ट्रांसफॉर्मर करता है कि डेटा को स्टेप ए स्टेप बी से गुजार के फिर इधर पहुंचा देता है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर मैंने इंपोर्ट किया। उस कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर पाइपलाइन कैटेगोरिकल को मैंने पास ऑन कर दिया और पाइपलाइन न्यूमेरिकल को पास ऑन कर दिया। अब उसको पता है कि भाई मैंने किन किन फीचर्स को लेकर जाना है। अच्छा, पता कैसे चल रहा है कि मैंने किस फीचर को कैटेगोरिकल ट्रीट करना है? आपको याद होगा कि हमने कैटेगोरिकल फीचर्स नाम का एक एरे बनाया। तो अगर मैं कॉपी करके आपको दिखा भी दूं, शायद आप भूल गए हो, याद है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। तो उसको पता है कि मैंने किनको कैटेगोरिकल ट्रीट करना है और किनको न्यूमेरिकल ट्रीट करना है, ठीक है। और ये कह रहा है कि बाकी जो रिमाइंडर है, जैसे कस्टमर आईडी है, वो सबको वो ड्रॉप कर देगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर मैं कस्टमर आईडी को क्यों लेके जाऊंगा, दैट इज बेसिकली की फीचर तो है नहीं, तो मैं कस्टमर आईडी को क्यों लेके जाऊंगा। और इसके अलावा भी अगर कोई नया फीचर दिया तो मेरी पाइपलाइन नहीं फटेगी, बिकॉज रिमाइंडर को मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर कोई 12 फीचर दे भी देना तो वो सारे इग्नोर हो जाएंगे और ऑब्वियसली पाइपलाइन में से फिल्टर आउट हो जाएंगे। मेरा मशीन लर्निंग मॉडल कहेगा भाई मैं 12 कॉलम्स की प्रेडिक्शन करना जानता हूँ, बस मैं यही, ठीक है। फिर मैंने इन सबको स्टैक कर दिया, यानी कि स्टैकिंग कर दी। प्री प्रोसेसर स्टेज 1 आ गया, प्री प्रोसेसर स्टेज 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टैकिंग कर दी, ये यहाँ पे मेरे पास स्टैकिंग आ गई। और स्टैकिंग करने के बाद मैंने इसके ऊपर फिट का प्रोसेस चला दिया। जब फिट का प्रोसेस चलाया तो उसके बाद क्या हुआ, उसने याद कर लिया कि यार पहले स्टेज पे लैम्डा फंक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करना है। फिर उसके बाद कुछ फंक्शंस लोड हो रहे हैं, उस फंक्शंस को लोड होने के बाद काम करना है। अब इसके नतीजे में होता क्या है, लेट मी जस्ट शो यू बाय रनिंग दिस। मैं कस्टम क्लासेस को हटा रहा हूं और ये मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो गया। अब वो ये पाइपलाइन फिट हो गई है, समझ में आ गया उसको कि भाई इस पाइपलाइन के अंदर डेटा बनाने तक, अभी मशीन लर्निंग मॉडल में नहीं जा रहा, डेटा बनाने तक क्या करूंगा। पहले मैं फंक्शन ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर मैंने एक लैम्डा फंक्शन दिया हुआ है, दैट वाज प्रीवियसली डिफाइंड। न्यूमेरिकल वैल्यूज में पहले इंप्यूटेशन होगी, फिर डिस्क्रिटाइजेशन होगी, फिर उनकी ऑर्डिनल एनकोडिंग होगी। दिस इज जस्ट अ सैंपल, दिस इज नॉट अ डेटा साइंटिस्ट अप्रोच, जस्ट इंजीनियरिंग, शोइंग इंजीनियरिंग स्किल्स, ओके। ऑलराइट, और फिर उसके बाद वन हॉट एनकोडर आ गया एंड दिस विल गो इनटू। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसके जरिए टेस्टिंग करी कि यार अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं ट्रेन के डेटा को तो क्या ये मेरे मतलब का डेटा बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो मैं इसको चला के देखता हूं। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे मैंने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ये मैंने जानबूझ के इसके नाम के अंदर लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, मंथ टू मंथ, इस तरीके से ये पूरे मेरे फीचर्स बना चुका है। जो भी मैंने वन हॉट एनकोडिंग करनी थी, चीजें करनी थी, तो इवन वो टेन्योर को भी सही तरीके से वो अपने हिसाब से सेटिंग कर चुका है। मंथली चार्जेस को भी देखें, 0 to 2 की वैल्यू के दरमियान वो डिस्क्रिटाइज कर चुका है, ठीक हो गया।
तो जैसा मैं चाह रहा था, ये अब मशीन लर्निंग, ये डेटा अब रेडी है कि मेरे मशीन लर्निंग मॉडल में कंज्यूम हो सके। और अगर वाई ट्रेन को देखूं तो वाई ट्रेन तो मेरा वैसे का वैसे ही है, क्योंकि आपका वाई ट्रेन तो आपने ट्रीट ही नहीं किया था, एंड यू डोंट नीड ट्रीट एज वेल, क्योंकि आगे जिस मशीन लर्निंग मॉडल को मैं लेके जा रहा हूँ उसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ट्रीट करना होता तो मैं ट्रीट कर लेता, लेकिन अगेन उसकी पूरी पाइपलाइन डिफरेंट हो जाती। ऑब्वियसली टेस्ट डेटा के अंदर तो वाई होता ही नहीं, तो वहां पे फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट होता। फिर आपके पास आया कि मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर लिया और मैंने उसके अंदर पूरा ये स्टैक जो मैंने बनाया था, ये वाला जो स्टैक बनाया था, इसको मैंने पास ऑन कर दिया और मैंने कहा कि ये जब पूरा स्टैक बन जाए तो इसका जो डेटा है वो किसमें डाल देना, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में, और किसको कॉल कर लेना, फिट को। तो जैसे ही ये कॉल करूंगा तो इसके नतीजे में एक पूरी पाइपलाइन आ गई कि भाई यार पहले ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, सब चीजें होंगी, ये ट्रांसफॉर्म डेटा किसमें जाएगा, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के अंदर। अब अगेन नाउ आई कैन ऑलवेज, ये जो पाइपलाइन मुझे मिली है, ये पाइपलाइन का ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं एक्यूरेसी वगैरह सब चीजें देख सकता हूँ कि मेरे बिल्कुल डेटा साइंटिस्ट के जो वर्क बेंच है उसके साथ मैच करी है नहीं करी। इफ देयर इज अ चेंज तो अगेन फिर आपको पाइपलाइन को अलाइन करना पड़ेगा, सीड वेरिएबल्स आते हैं, अप्रोच का फर्क हो गया, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ये सब चीजें देखनी होगी। अगेन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेटा साइंटिस्ट ने भी 93% 93.2 दिया था, यहाँ पे भी 93.2 आ रहा है, तो आई एम ओके, फिर मैं आगे लेके जाता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब मैंने जो पाइपलाइन बनाई ना, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी पावर क्या है। मैंने एक टेक्स्ट डेटा से एक रॉ उठाई है और उस रॉ को उठा के यहाँ पे दिखाया। टेस्ट डेटा के अंदर से मैंने उठाया कि एक कस्टमर आया जो कि फीमेल है, सीनियर सिटीजन है, पार्टनर है, सब चीजें, और उसके टोटल चार्जेस। आप नोटिस करें देयर इज नो चर्न इन्फॉर्मेशन बिकॉज वी वांट टू प्रेडिक्ट चर्न इन्फॉर्मेशन। ओके, फायदा क्या है, जैसे ही मैं अपने प्री प्रोसेसर स्टैक के अंदर ट्रांसफॉर्म के फंक्शन में डालूंगा तो ये उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में वो आगे लेके जाएगा मशीन लर्निंग के मॉडल से प्रेडिक्ट के लिए। ये देख रहे हैं आपके टेस्ट डेटा को उसने कितनी आराम से कर दिया विदाउट एनी पासिंग ऑफ द फंक्शंस कि यार ये कर ले, वो कर लो, ये वाली py फाइल से फंक्शंस लेके आओ, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें पाइपलाइन में ही पैकेज हो गई। दैट इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। और ऑब्वियसली इट कैन प्रेडिक्ट एज वेल, तो यहाँ पर प्रेडिक्शन आ गई। फॉर एग्जांपल मैंने ये अपना प्रेडिक्शन एरे पास कर दिया और ये प्रेडिक्शन दे दी कि हाँ चर्न होने वाला है। फाइन, अगेन आई कैन मैच द टेस्टिंग एक्यूरेसी, इफ देयर इज अ डिफरेंस आई कैन ऑलवेज लुक इनटू इट। अब यहाँ पे एक मजे की चीज आती है, यूजुअली जॉबलिब की लाइब्रेरी यूज होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, बट व्हाट आई हैव लर्न कि इफ यू हैव अ कस्टम फंक्शन तो आपको जॉबलिब को आप यूज नहीं कर सकते मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, तो उसके लिए आपको डिल यूज करना होगा। तो मैं जब ये पहली दफा बना रहा था तो मेरी रात काली हो गई थी, लेकिन आपकी रात काली नहीं होगी, आपको पहले से पता चल गया कि ये डिल आपके पास लाइब्रेरी मौजूद है। तो अगेन मैंने क्यों रन कर दिया, मेरा क्वेश्चन है। तो वेट करें इसको। जी पूछिए। आपने भी कहा कि वी कैन नॉट यूज जॉबलिब टू एक्सपोर्ट अ मॉडल पिकल फाइल। कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने ये एसक्यूएल पाइपलाइन बनाई ना, तो व्हाट आई लर्न कि इसमें जब आप कस्टम फंक्शन यूज करते हैं, जैसे मैंने ऊपर लैम्डा यूज किया था, अननेम फंक्शन होता है ना लैम्डा, तो उसके दरमियान ना जो जॉबलिब है वो सही सीरियलाइज नहीं कर पाता है, और व्हाट इट डज कि प्रोडक्शन के टाइम पे वो एरर मार देता है। जो डिल है जब मैंने उसके जरिए एक्सपोर्ट किया तो ये काम हो गया। अब अगेन ये कोई हैकी नॉलेज नहीं, देयर माइट बी मेनी मेनी पैकेजेस और एनी अदर वे एज वेल, मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन मिस कर रहा, बट जस्ट शेयरिंग माय। I don't think ऐसा केस होता है बिकॉज जॉब मतलब यूजुअली तो आई थिंक हर केस में जॉबलिब यूज होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो प्रोबब्ली कोई numpy वर्जन का आई थिंक कोई मसला होगा। मे बी एनीथिंग। मतलब मैं तो रात काली करने के बाद ना मैंने लगाए थे 4 घंटे मैंने इस पे काम करना है। अब जैसे ही 4:05 हुए तो मैंने कहा कुछ और नया ढूंढते, राइट? तो यू कैन ऑलवेज रिसर्च इट। ओके, ओके फॉर एवरीवन, सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखे। फैजान को कई दफा क्लियर हो गया। ऑलराइट, बाकी लोग भी प्लीज जवाब देने। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। आगे चलते हैं। आई होप कि हम एंजॉय कर रहे होंगे और बोर नहीं हो रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर दिखाया और फिर उसके बाद हम सब चीजों को आगे लेके गए। अगेन मैंने डिल को छोड़ दिया अभी, और क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, राइट? मैंने ये पाइपलाइन को एक्सपोर्ट किया, और जो पाइपलाइन को मैंने एक्सपोर्ट किया इसको जैसे ही मैंने रन किया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो इससे होगा क्या भाई,
इससे होगा ये कि मेरे भाई यहाँ पर आओगे तो आपके पास एक pipeline.pickle नाम की फाइल बन जाएगी। इस पाइपलाइन के अंदर तमाम वो इम्पोर्टेंट चीजें मौजूद हैं जो कि बताती हैं कि भाई ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और फिर एंड में प्रेडिक्ट होगा, राइट। तो मुझे डेटा इंजीनियर को कोई दसियों फाइल एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शन देने की जरूरत नहीं है। सिंपल 2 पिकल फाइल दूंगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फीचर डिक्शनरी दूंगा पिकल की, ताकि वो उसको कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल ट्रीट कर सके, और दूसरा मैं उसको पाइपलाइन दूंगा ताकि वो फॉर एग्जांपल उसके ऊपर प्रेडिक्शन कर सके। तो दिस इज द इंटायर थिंग। अगर मैं पाइपलाइन को दोबारा लोड करूं तो वो मुझे पूरा बता रहा है। तो इवन डेटा इंजीनियर कैन डू द सेम थिंग, राइट। अगर वो फॉर एग्जांपल पाइपलाइन को लोड करता है और गेट स्टेट की कमांड लिखता है तो उसको पता चलेगा कि यार डेटा साइंटिस्ट ने पहले ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, सब चीजें करी है, उसके बाद मेरे पास चीजें आ रही। और फिर वो ये भी बता रहा है कि एसक्यूएल का कौन सा वर्जन चलेगा, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप किसी डेटा इंजीनियर किसी और वर्जन में बैठा हुआ है, आप किसी और वर्जन में बैठे हुए हो, एंड दैट वुड गो अराउंड, राइट, इट वुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आप लोग सब समझते होंगे कोई ना कोई जिंदगी में वर्जन की वजह से कभी ना कभी फंसा होगा, राइट। अच्छा, मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी को अभी मैं इस वक्त टाइप कर रहा हूं बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइक एक्सप्लेनेबल एआई थिंग। तो अब दैट्स अबाउट इट फॉर द मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन। और अब हम आते हैं कि यार स्ट्रीमलेट की ऐप डिप्लॉय कैसे की जाती है। तो वो लोग जो कि स्ट्रीमलेट को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, वो लोग जो स्ट्रीमलेट को ऑलरेडी जानते हैं वो कमेंट करेंगे स्ट्रीमलेट, और जो लोग स्ट्रीमलेट को नहीं जानते वो कमेंट करेंगे नो, और मीनवाइल ऑन रजा सवाल पूछे। ओ मेरे खुदाया, इतने सारे नो। ताहा आपने स्ट्रीमलेट कहाँ से सीखी? यूनिवर्सिटी में तो नहीं लग रहा पढ़ा रहे, सब लोग नो लिख रहे हैं। चलो, I did a course, good job. So Hib knows, on Raza knows as well. Okay, a lot of people don't know, but कुछ लोगों को मालूम है और लग रहा है कि उनकी पर्सनल एफर्ट है या लिंक्डइन पे देखा और फिर कोर्स किया। So Streamlit is a very very low code platform, and when I say low code तो HTML CSS नहीं लिखनी पड़ती, that is a nightmare for people, right? तो यहाँ पर आप इतनी जल्दी ड्रॉप डाउन बनाते हो, टाइटल लगाते हो, सब चीजें करते हो प्योर पाइथोनिक तरीके से, ठीक है। और फ्लास्क भी चलती है, बिल्कुल फ्लास्क पे भी आप HTML ऐप बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन भाई मैं अपने आप को ना नॉन सीएस रेट करता हूँ। तो नॉन सीएस बंदा अगर पाइथन की ऐप बनाना चाहे तो स्ट्रीमलेट से जल्दी कोई ऐप नहीं बना सकता। अभी एक मजे का प्लेटफॉर्म है ग्रेडियो भी, तो ग्रेडियो पे भी बनती है, लेकिन वो भी एक अलग चीज है, मतलब अभी मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अगर आपको ग्रेडियो के बारे में नहीं पता तो आप नोट कर लें अपने पास एंड ग्रेडियो को लर्न करें। एंड अच्छी बात पता है क्या, कि ये लाइब्रेरी पाकिस्तानी ने बनाई, दैट एक्चुअली इंस्पायर्स कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड ही इज अ स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट एंड फ्रॉम कराची, एंड हैज आल्सो बीन फीचर्ड इन कराची आई मीटअप। हमारा मीटअप नंबर 13 था कि हाउ यू कैन डेवलप ओपन सोर्स थिंग्स। एक्चुअली ग्रेडियो इसने लाइब्रेरी बनाई थी, एंड दैट वाज एक्वायर्ड बाय हगिंग फेस। यू ऑल नो हगिंग फेस क्या है, राइट। सो दैट आई होप कि आपको इंस्पायर करेगा कि भाई हम भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं प्रेजेंटेशन नंबर 2 पे, क्योंकि वो स्पेसिफिक बनी हुई है स्ट्रीमलेट। सो स्ट्रीमलेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें प्योर पाइथन के अंदर आप चीज लिखते हो, नो HTML नो CSS। करनी है तो कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं करनी तो कोई आपको मसला नहीं आएगा, ठीक है। इंटरैक्टिविटी रियल टाइम चलती है, सब चीजें होती है। अब तो स्टेट्स भी सेव होते हैं। मैं तो स्ट्रीमलेट तब से यूज कर रहा हूँ जब ये छोटा सा स्टार्टअप था, बट मुझे पता था कि ये पोटेंशियल है, और अब ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन गया। पार्डन, थोड़ी सी आवाज खराब हुई होगी। और आप इसको इंस्टेंटली डिप्लॉय कर सकते हो लाइव एनवायरनमेंट के ऊपर, यानी कि आप क्लाउड पे अगर फॉर एग्जांपल क्विकली किसी को सेंटिमेंट एनालिसिस की आप दिखाना चाहते हो तो इट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर गिटहब प्रोजेक्ट्स। गिटहब पे आप जाके पूरी पूरी पाइपलाइंस बनाएं, सब चीजें करें, और इंटरव्यू में जाके दिखाएं कि भाई जरा मोबाइल खोलें, ये वाला URL लिखें, इसको क्लिक करें, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, या आप खोलें। दैट वुड एक्चुअली फ्लैग द इंटरव्यूअर, राइट, कि भाई आप तो ऐप बना के आ गए। वर्किंग विद स्ट्रीमलेट इज वेरी वेरी इजी। पहले तो पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट करेंगे, फिर स्ट्रीमलेट रन करते हैं। तो आपके पास तरीका क्या होता है, स्ट्रीमलेट रन हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड की ऐप फायर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अपनी स्क्रिप्ट है वो आप लिखेंगे तो वो स्क्रिप्ट फायर हो जाएगी, राइट। डेटा फ्लो कैसा होता है, टॉप टू डाउन हो रहा होता है।
तो ऐप सोर्स के अंदर अगर आपने कोई विजेट्स बनाने हैं तो स्लाइडर्स ऐड करें, ये सब चीजें करें। अगर आप डिटेल में स्ट्रीमलाइट को सीखना चाहते हैं तो हमारा एक और सेक्शन भी है, मैं अभी मुझे लिंक याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ शेयर कर दूंगा। प्लीज इनको एक क्लासरूम के अंदर 1 घंटा अरेंज करके इनको स्ट्रीमलाइट सिखाएं ताकि एटलीस्ट ये अपना पोर्टफोलियो बना सके। ठीक है, क्लास क्वालिटीज अपनी जगह पे है, दैट शोज यू कि यू आर वेरी वेरी रिगरस, बट स्ट्रीमलाइट शुड बी आल्सो हैंडी ताकि आपको पता चले कि बिजनेस के अंदर ना इंजीनियरिंग का कोई फीट नहीं होता। बिजनेस के अंदर अगर क्विक रैपिड प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं तो टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रीमलाइट हेल्प्स यू अचीव दैट। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स क्या है, आपने इंपोर्ट किया स्ट्रीमलाइट एज एसटी, फिर आपके पास st.header आ गया, आपने माय फर्स्ट ऐप की और फिर आपने रन कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे और आप पहुंच जाएंगे स्ट्रीमलाइट कैसे रन होता है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट कैटेगरीज क्या है इसके अंदर, भाई आप टेक्स्ट एलिमेंट डाल सकते हो, इनपुट एलिमेंट्स डाल सकते हो, इस तरीके से आप अलग अलग तरह के टेक्स्ट डाल सकते हो, इनपुट एलिमेंट्स डाल सकते हो। बिकॉज दिस क्लास इज नॉट फॉर स्ट्रीमलाइट, इट्स एक्चुअली 6 hours लॉन्ग कंटेंट, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, बट आपको एक अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी आसान तरीके से एक सिंगल लाइन के अंदर चीजें हो रही हैं भाई। तो इतना ज्यादा मेहनत करने की और मैटप्लॉटलिब का खतरनाक सा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन यू कैन डू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लोज, कंटेनर्स भी हैं, सब चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें यू कैन ऑलवेज क्रिएट वंडरफुल एप्स विद स्ट्रीमलाइट, और लोगों ने बनाई भी है। आपको नजर आ रहा है इसके अंदर 4 कॉलम्स मौजूद है और यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 4 कॉलम है और ये अलग अलग कंटेनर्स मौजूद है। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स ऐप कुछ लाइंस ऑफ कोड्स के अंदर आप जो है वो स्ट्रीमलाइट में बना सकते हो। मीडिया एलिमेंट्स है, पोर्टफोलियो बना रहे हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आप स्ट्रीमलाइट में बना सकते हो। अक्सर लोगों ने बनाई है कि आपने इमेजेस दिखाएं, अपने वो लगाएं, सारी चीजें करिए, तो एवरीथिंग यू कैन डू। इवन यू कैन डेवलप कैट एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप दिखाना चाहते हो यार मैंने ओपनएआई की एपीआई को इंटीग्रेट किया, तो भाई मैं कैसे दिखाऊं, तो इंटीग्रेट किया तो शो मी द प्रोजेक्ट। ठीक, इसके अलावा थर्ड पार्टी इतनी लाइब्रेरीज हैं कि मैं लिटरली सीखता रहता हूँ कि भाई शार्टसीएन की यूआई है, आप सबको पता होगा शार्टसीएन आजकल बहुत रॉबस्ट यूआई लेटेस्ट बनाने में हेल्प कर रहा है। एक यू ग्रिड है, तो बहुत कुछ है। पांडास प्रोफाइलिंग इज वंडरफुल, इफ यू वांट टू डू ईडीए जस्ट पांडास प्रोफाइलिंग के गिटहब पे जाइए और वहां पे डेटा सेट पास कीजिए, आपका आधा ईडीए डन, राइट। फिर आपके पास आता है स्टेटस एंड इन्फो एलिमेंट्स। ऑब्वियसली जब ऐप चल रही होती है तो प्रिडिक्टिंग आ रहा होता है या प्रोग्रेस बार चल रही होती है, तो ऑब्वियसली ऐप के अंदर जो स्टेटसेस होते हैं या स्टेट्स होते हैं उनको बताना जरूरी होता है, राइट। तो हम यहाँ पे एक रियल ऐप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलाइट एज एसटी, पांडास को इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हम पांडास का डेटा फ्रेम यूज करेंगे। जॉबलिब आ गया, डिल को हम लेकर आ गए, आपको बता दिया मैंने डिल क्यों यूज किया है। सबसे पहले हमने प्री ट्रेन मॉडल को लोड किया, मॉडल इक्वल्स टू डिल डॉट लोड पाइपलाइन। फिर आपने फीचर डिक्शनरी को लोड किया, उसके बाद आपने बोला कि भाई माय फीचर डॉट पिकल। फिर उसके बाद आपने बोला कि यार एक फंक्शन बनाता हूँ प्रिडिक्ट चर्न, डेटा आएगा, मॉडल को जो मॉडल मैंने लोड किया है वो यहाँ पे पास ऑन हो गया और प्रिडिक्ट का फंक्शन चलेगा, वो अपने अंदर ही अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मर की पाइपलाइन चलाएगा। ऑब्वियसली st डॉट टाइटल, कस्टमर प्रेडिक्शन ऐप, सब हेडर्स और ये सब चीजें हम डाल सकते हैं ऑलवेज, राइट। तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है। ये तमाम मैंने सिलेक्शन बॉक्सेस बना दिए इतने सारे, ठीक है। तो इसके जरिए क्या हुआ कि भाई यूजर ये जो डेटा मैंने यूज किया था ना, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि यूजर इससे बाहर ना जाए। फॉर एग्जाम्पल नो इंटरनेट सर्विस हो, ऐसा ना हो कि यस इंटरनेट सर्विस यूजर डाल दे। तो इस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए मैंने सेलेक्ट बॉक्सेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो व्हाट आई हैव डन, कैटेगोरिकल वैल्यूज को मैंने सिलेक्टेड बॉक्स के अंदर डाल दिया और फॉर न्यूमेरिकल इनपुट्स मैंने स्लाइडर डाल दिया ताकि लोग वैल्यूज को खेल सके। अगेन इसके ऊपर मैंने एक लूप चला दिया है कि ऑब्वियसली सबके लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको एक फंक्शन में डाला, उसको बताया कि वैल्यू अगर कैटेगोरिकल है, जो कि यहाँ पे डिक्शनरी की से पता चल रही है, तो उसके जरिए आप क्या कर लो, उसके ऊपर कैटेगोरिकल फील्ड्स बना दो और अगर वैल्यू अगर न्यूमेरिकल आ रही है आपके पास तो आप उसके लिए स्लाइडर दे दो। अभी ऐप जैसी दिखेगी ना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ लूप का फंक्शन है, कैटेगोरिकल वैल्यूज को पहले कर लिया, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज को कर लिया, ठीक है। और आप लेकिन ये सारी चीजें जो ऑर्डरिंग है वो सारी हैंडल कर लेगा पाइपलाइन खुद। तो दिस इज द एंटायर ऐप दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो अब आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि क्या सीन हो रहा है कि भाई सबसे पहले आपके पास डेटा आ गया और डेटा के आने के बाद ड्रॉप डाउन दे दिए, न्यूमेरिकल फीचर्स आ गए। अब आपने एंड में बटन दे दिया प्रिडिक्ट का, ठीक है। तो एंड में प्रिडिक्ट का बटन दबाया, आपने प्रिडिक्ट चर्न किया, आपने बोला कि जो जो डेटा इनसे सेलेक्ट करके बंदा लेकर आ रहा है आप सिंपली जाओ और इसके जरिए आप क्या करो, उस डेटा को पास कर दो। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली चर्न मुझे बता रहा है यस और नो, क्योंकि यूजर को क्या समझ में आएगा चर्न यस और चर्न नो, तो मैंने उसको कर दिया है कि एक जुमला बना दिया है कि भाई द यूजर्स चर्न इज एक्सपेक्टेड अगर यस आता है, और
यूजर्स चर्न इज नॉट एक्सपेक्टेड अगर नो आता है, राइट? तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट कर दिया, राइट? So for the presentation, that's about it. But let me just show you the quickly code which is for Streamlit. And आपको एक जगह होते हुए फिर ये नजर आएगी चीज। तो वही चीजें इंपोर्ट किया है, सब चीजें सीक्वेंशियल आ रही हैं, फिर वही लूप लगाया है, फिर वही लूप लगाया है इसके ऊपर। अब इसके अंदर थोड़ा सा इंजीनियरिंग फीट है, और अगेन डे वन पे बता रहा हूँ, बिफोर इम्पोस्टर सिंड्रोम हो गया भाई, मुझे तो डे वन से ही आती नहीं, भाई मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी गूगल की धक्के खाए, रात को जगह, और फिर मैंने ये सब चीजें सीखी। आपको तो अभी हलवा मिल रहा है, राइट? तो अगेन, और दूसरी बात, ये भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, स्काई इज द बेस्ट लिमिट। अभी तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जस्ट टू इंस्पायर यू, और आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन होनी चाहिए। मैं नॉन सीएस हूँ, आप सीएस हो, तो यू आर वे अहेड देन मी, राइट? इनपुट डेटा डेटा फ्रेम के अंदर ट्रांसलेट किया, क्योंकि मेरा मॉडल डेटा फ्रेम इनपुट ले रहा था, मैंने इनपुट डेटा का 0 जो कि मैंने पास कर दी, ठीक है? प्रेडिक्शन यस और नो कर दिया, ये सब चीजें कर दी। अब इसके नतीजे में मेरे पास क्या आ गया भाई, एक ऐप आ गई। तो मैं अभी आपको स्ट्रीमलेट की ना ऐप चला के भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज वेट कीजिएगा। अच्छा, ये तो टैबलेट चल रहा है। आज मैं आपको एक मजे की और चीज दिखाऊंगा। मैंने सुबह टैबलू का सेशन डिलीवर किया, तो वहां पर ना मैंने एक चीज क्लासिफिकेशन दिखाई कि टैबलू में आप मशीन लर्निंग कैसे करते हो। तो वही चीज आपको यहाँ पे नजर भी आएगी, जो हमने ये बेस्ट प्रैक्टिस सीखी है MLOps की, वही हमें टैबलू की प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी उतार देगी। तो मैं सबसे पहले इसको क्लोज ऑफ करता हूँ ताकि मेरे दूसरे नोटबुक क्लोज हो। स्ट्रीमलेट रन and what's my file name? So this will fire up window and UI. I hope. Here, जबरदस्त, right? Dependents yes कर लिए, मैंने DSL को no कर लिया, ये भी कर लिया। This quickly allows me to see model sensitivity as well। जब मैं यहाँ से play करता रहूँ और उसकी basis पे फिर what I can do is कि भाई मैंने यहाँ पे मंथली चार्जेस जो है फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिए कि भाई $1000 थे उसके, और टेन्योर उसका 3 साल था, और टोटल चार्जेस उसके $5000, ठीक है हो गया। तो मतलब 5 महीने से रहा है, बल्कि इसको 5 कर देते हैं तो लॉजिकल हो जाएगा कि 5 महीने रहा, मंथली चार्जेस 1000 है, तो टोटल चार्जेस 5000 बनेंगे, राइट? और मैं इसके ऊपर प्रेडिक्शन देखता हूँ, तो प्रेडिक्शन इज नो, हेंस कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चर्न, राइट? एंड इफ यू सी फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, आपको नजर आएगा कि कितना छोटा सा कोड लिखा है मॉडल को प्रोडक्शन में उतारने के लिए, यूजिंग दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाट आई हैव लर्नड। आई होप सो कि दैट इंस्पायर्स यू। और बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, मैं आपको क्विकली टैबलू प्रेप का अगर किसी को आइडिया नहीं है तो टैबलू प्रेप गूगल कर ले और आइडिया हो जाएगा। एंड यू कैन ऑलवेज, आई आल्सो लीड टैबलू एम्बेसडर एज पाकिस्तान, तो आप कराची के अंदर टैबलू यूजर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बेपना अच्छा स्किल रख के आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। सो बिजनेस इंटेलिजेंस इज की, लेकिन डेटा प्रिपरेशन के अंदर टैबलू ने नो कोड लो कोड टूल लॉन्च किया है, दैट इज टैबलू प्रेप। ड्रैग एंड ड्रॉप एल्को चंद का डेटा लेकर आया। ये डेटा है क्या, जरा सा मैं आपको पीक करवा देता हूँ इस डेटा की। ये क्लीन के अंदर आपको नजर आ जाएगा, क्लीन के स्टेप में, ये क्लीन के स्टेप में आपको नजर आ रहा है, राइट? और क्लासिफिकेशन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये प्रेडिक्शन कर रहा है, और यहाँ पर मुझे क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? एंड ड्राइंग के अंदर अभी ये क्लासिफिकेशन क्यों नहीं आ रही, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। पार्डन मी, उसकी वजह ये है कि अभी मैंने टैप पाई सर्वर स्टार्ट नहीं किया है, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट टैप पाई, तो फिर ये करना शुरू कर देगा। दिस इज अ लाइब्रेरी दैट एक्चुअली अलाउज ओनली यूसेज ऑफ वन सॉकेट, ओके? तो ऑलरेडी एक अच्छा हाँ चल रहा है, एक सॉकेट ऑलरेडी चल रहा है, पार्डन मी, हाँ ये ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे पास सर्वर कनेक्टेड है ऑलरेडी, तो मैंने इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। Did I break something? चलो अभी ज्वाइन कर लिया, हाँ ओके। प्रेडिक्शन ये आ रही है, बेचारा दिखा रहा है प्रेडिक्शन, लेकिन हम देख नहीं रहे। सो ये मेरे पास कस्टम रॉस थी, मैंने 10 इनपुट रॉस ले ली, अगेन वही डेटा डाला है, और ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में मैंने टैबलू प्रेप में प्रेडिक्शन ले ली। नाउ आई कैन क्रिएट डैशबोर्ड और एनीथिंग अब इसके ऊपर मशीन लर्निंग की बेसिस पे।
तो ये स्क्रिप्ट काम कैसे कर रही है ये भी मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। और एज एन एमएल इंजीनियर आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग नहीं जानते और आप इसके अंदर ढेरों फ्रीलांसिंग के ऊपर पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डेटा सेट लोड किया है, वही चीज नजर आ रही है, मैंने मॉडल को लोड किया है, एक सिंगल लॉ का प्रेडिक्शन फंक्शन बनाया और क्योंकि टैब्ल्यू पूरा डेटा फ्रेम पास कर देता है जो मेरे क्लीन स्टेप से आ रहा था, तो मैंने उन सबके ऊपर इटरेशन करके एक एक प्रेडिक्शन कर दी। ठीक है, और रिजल्ट डीएफ मैंने पास कर दिया तो वापस टैब्ल्यू के अंदर आ गया और उसकी डेटा टाइप्स यहाँ पे डिफाइन किए क्योंकि मैंने वही चीजें प्रेडिक्ट करवाई थी। एक कस्टमर आईडी, क्योंकि मेरे डेटा में कस्टमर आईडी से ज्वाइन करूंगा तो प्रेडिक्शन मुझे मिल जाएगी, तो बाकी फीचर्स लाने की जरूरत नहीं है। सो आई होप कि आपको ये पावर पैक सेशन पसंद आया होगा, ऑल्दो इट वाज रेस्ड वेरी क्विक अगेंस्ट द टाइम, बट साथ लेने तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा फेस किया है। Tableau Prep is not like Tableau Server. Tableau Server is different, but Tableau Prep is a separate tool. Yes, I can share the code. मैं आपके ऑर्गेनाइजर से शेयर कर दूंगा and I would request your organizers कि एक कस्टम क्लास रखें और उसके अंदर ये डिटेल सेशन करवाएं 5-6 घंटे का, ताकि सब लोग ये तजुर्बा ले लें। सोचें कि अगर 500 लोग ये चीज का तजुर्बा ले लेंगे तो कितने सारे लोग मशीन लर्निंग का मॉडल प्रोडक्शन में डालना जान देंगे। तो प्लीज ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट है मेरी। श्योर सर, हम लोग इनके साथ शेयर कर देंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम योर एंड। That's it from my end. मेरे गले ने जितना साथ दिया मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करूं। FDSS is a wonderful organization. कराची में भी हमने काम किया है and इस्लामाबाद में भी was a pleasure to work with. Thank you for giving a wonderful workshop to everyone. I extend my heartfelt gratitude to you, and inshallah we'll be in touch and we'll make sure that having a classroom banaye and everyone could interact and look into whatever that you've taught us today. While we conclude our session today, I would just like to make a surprise announcement that Karachi.ai, in collaboration with Fast Data Science Society, is looking to empower new leadership in Islamabad, since they're trying to expand over the Twin Cities as well. So we are thrilled to offer you all the opportunity to apply to become the ambassador or the lead at Islamabad AI chapter initiated by Karachi.ai. और इस रोल के अंदर you all will be shaping Islamabad's AI community by driving collaborations between both Karachi.ai and Islamabad.ai and creating a valuable learning experience and innovation opportunities. For the role, basically आप लोगों का the person who will be applying for and will be selected for this role will be responsible for the community in general over here. You will be at the forefront of the community building, event leadership, participation, engagement, knowledge sharing, and so on and so forth. So we're looking forward to all sorts of AI enthusiasts who are passionate about leading and expanding our community's impact over here. We'll be sharing a Google form link where you can apply to become a leader at Islamabad.ai, and this is your chance to play a key role in bridging the AI communities of Karachi and Islamabad. So thank you all once again for joining us today, and it was a wonderful session, and we are excited about the future and look forward to welcoming you all to much more of events in the future. Thank you. And yeah, I'll share the link over here as well, just a minute, to the form. कोई भी ये जिम्मेदारी ले रहा है तो याद रखें, आपको बुखार हो रहा है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, देखिए मैं प्रेशर नहीं डाला, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हाउ क्रिटिकल इज दैट रोल, राइट। आज मैं जिम्मेदारी का एहसास करके मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ बिकॉज आई न्यू कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड लर्न फ्रॉम माय सम ऑफ कपल ऑफ आवर्स। तो ये स्पिरिट चाहिए। आई लुकिंग फॉरवर्ड कि जिसके पास ये स्पिरिट है वी मेक लीडर आउट। सारी सपोर्ट करेंगे आपको इवेंट्स करवाने में भी और एजुकेशन पर्पस के लिए भी और इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स में भी। मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, सिर्फ एक बंदे की रिक्वायरमेंट है। तो आर यू द वन? If you all have any questions, you can ask right now, and I'll be sharing the link in a bit. कोई सवाल नहीं है किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने दरअसल मशीन लर्निंग मैंने कर लिया है, तकरीबन सारे एल्गोरिदम कर लिए हैं और डीप लर्निंग की तरफ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो
JNAI है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर मैंने JNAI करनी है तो उसके लिए सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी मुझे, कि पांडास के ऊपर ग्रिप रखनी है और साथ में जो मैटप्लॉटलिब वगैरह उसके ऊपर ग्रिप रखनी पड़ेंगी कि नहीं? यार देखो, शुरू में किसी ने स्टैनफोर्ड के कोर्स की बात की थी, तो मैंने ये सारे कोर्सेज ना पास ऑन किए जस्ट टू इंस्पायर लाइक हाउ माय नॉन सीएस जर्नी स्टार्टेड। आई वाज वन ऑफ यू गाइस पीपल। आप लोग ज़्यादा थोड़ा प्रिविलेज्ड हो कि आपने सीएस यूनिवर्सिटी में थे, मैं एसीसी हूँ, राइट? सो आई हैव टर्न माय करियर फ्रॉम अकाउंटिंग प्रैक्टिस टू इनटू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, एंड स्टिल येट आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज मुझे तो अभी याद भी नहीं होगा कि यार कब लॉग नॉर्मलाइजेशन यूज करनी है, क्या करनी है। वो मेरे बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाते हैं। कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं हो सकता हर फील्ड का, जो हमारे लोग पढ़ाते हैं। ऑल्दो ऊपर से कॉन्सेप्ट याद होते हैं, बहुत सारे चीजें पहले पढ़े रिवाइज करते रहते हैं, तो ऐसी चीजें होती है। ठीक है, तो मैं आपको इंस्पिरेशन के लिए सिर्फ ये दिखाता हूँ कि पोर्टफोलियो आपको बनाना जरूरी है। तो लेट मी जस्ट शो यू अ क्विक पोर्टफोलियो वेबसाइट। ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। मकसद है इसके अंदर आप भी इस तरह की एक विक्स की फ्री वेबसाइट बना सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी शो कर सकते हैं। दैट्स वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। एंड another one is okay, so this is the awards. So this awards also show all the certifications that I've done. So there's some of the certifications, obviously ये अपडेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा चीजें दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यार कोर्सेरा पे क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ताकि आपको आगे पीछे अंदाजा हो। देखो अभी भी जनरेटिव एआई के अंदर फाइन ट्यूनिंग है, तो फाइन ट्यूनिंग में क्या है, लेवल तो मौजूद है जिसके जरिए आप लेवल डेटा दे रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन है, ये आंसर होना चाहिए। तो अगेन सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट इज देयर। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे, अगर आप सोचते रहोगे, तो टू क्रॉस द पाथ वेरी टफ वे, रादर आपको मैं इनवाइट करूंगा कि इस तरह की सर्टिफिकेशंस आप कोर्सेरा पे लें, वेयर यू कैन गेट karachi.com/free। अप्लाई करें। और मैं तो तब से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, ये देखिए 2017 लिखा हुआ है, तो मैं तो तब से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ जब एआई कूल नहीं था, और इसी मकसद से कम्युनिटी बनाई है। और आपको भी मैं ये कहूंगा कि इस तरीके से करें, अपने बेसिक्स पे ग्रिप करें, टेक अ ग्रिप ऑन मैथमेटिक्स एज वेल, ताकि आपको आइडिया हो, राइट? बट डोंट गेट स्टक इनटू इट, बट आइडिया होना जरूरी है। आई होप मोहम्मद आपका क्वेश्चन सफिस हुआ होगा। I have also shared the link to the AI Lead Islamabad chapter. So please do apply, and it will be a wonderful experience, and it will help us, engage people both in Karachi and in Islamabad and grow our community. So thank you all for joining today. And again, agar koi sawal hai regarding the AI chapter or the Karachi chapter, please let us know. शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। वाज अ प्लेजर टू ज्वाइन। Yes. Chal, I think let's end the session over here, and we'll be sharing the recorded lecture